ਹੋਵੇ, ਆਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੰਦ ਔਰ ਗਲਾਸਤ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਆਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਏ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਉੱਤੇ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਚੌਥੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 3 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਟਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਜਵਾਬ? ਜਾਂ ਮੋਚੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੀਰੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਖਰੀਦਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅੰਗੂਠੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਮੁਤਲਕਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਖਰੀਦਣਾ, ਹਾਂ ਚਾਕੂ ਖਰੀਦਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਗੈਰ ਮੁਤਲਕਾ, ਗੈਰ ਮਾਰੂਫ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ 2 ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਖਲੋਤੇ ਜੱਟ ਦੇ ਨਾਲ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 6 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤੇ ਜੱਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀ, ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਟਾਪਿਕ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਟਾਪਿਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਖਲੋਤਾ ਜੱਟ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਕੈਸਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਨਵਾਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲੇ? ਖੋਬਾ ਹੈ ਨਾ ਨੇਰਾ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਉਹ 35 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥੱਕ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਉਹਨੇ ਕਢਾਏ, ਸਾਹ ਕਢਾਇਆ, ਠੀਕ, 45 ਮਿੰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਬੜਾ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ, ਓਨਲੀ 5 ਸੈਕਿੰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਬੂ ਜਹਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅਬੂ ਜਹਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਚਲੋ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਮਲਕ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਆ ਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਤੇ ਤਲਤ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰਾ ਮਿਲਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਸਿਕ ਸਾਹਿਬ ਪਸੰਦ ਦੇਖਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ? ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ,
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਲਾਮਾ, ਤੇ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਮਲਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਜਵਾਬ? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। एक मुनाजरा में भी देखा थी चौहान साहब का मुफ्ती साहब के साथ। जी एक मुनाजरा में भी देखा थी जी मुफ्ती मुबशिर टट्टी मुतर साहब के साथ चारी चौहान साहब का। अच्छा क्या कमाल का मुनाजरा था। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਪਨਾਹ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਜਾ ਪਨਾਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਗੰਦ 'ਚ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੜ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨਿਸਟ ਨਾਲ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂਮ ਰੱਖ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ 5-10 ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕੀਤਾ, ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਦੌੜਾ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪਵਾਏ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ। ਕੁਰਾਨਿਸਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰ 31 ਤੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਪਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਛਿੱਤਰ ਨੇ, ਕਦੀ 1000 ਯੂਰੋ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚ ਤੇ ਕਦੀ 500 ਯੂਰੋ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਵਾਉਣਗੇ ਚਿੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਣੇ ਚ ਪਵਾਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੌਲਵੀ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਏ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਿੱਤਰ ਪਵਾਏ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਜ ਪਵਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੌੜੇ ਨੇ, ਅਤਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ 31 ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੌੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੌੜੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਸਟਿਕ ਜੀ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਨਾ, ਟਾਪ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਸੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਨਾਜ਼ਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ नोटिफिकेशन आ गया सी। बेहतर हो गया यार। उस बंदे के साथ दिमाग खपाने का कोई फायदा है? वो जीशान आपको पता ही है कि वो ऐसे लोग जो हैं उनका कोई दीन नहीं होता, वो चस्के लेने आते हैं, उनका कोई तलक नहीं होता किसी नाल भी दिमाग ਖਪਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਡ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ ਤੇ ਢੋਲੇ ਤੇ ਮਾਈਏ ਗਾਓ ਤੇ ਨਸਾਓ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਸਦੇ। ਸਪੀਡਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ, ਲਿਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀਆਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਕਾਲ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀ। ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀ ਨਾ। ਨਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਨੇ ਬੜਾਇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾਇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ ਸੈਣੀ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਮ ਹਾਏ ਮਾਰਾ ਗੁਸਤਾਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਹਿਰੀਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਊਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਪੁੜਿਆ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ
तुम को किताब लिखी है? मैं क्या, मैं तो कोई नहीं किताब नहीं लिखी लवा है। साहब, मेरा मकसद ये था बात करने का कि हुसैनी साहब को भी अकल शऊर दिया है। आप मानते हैं कि नहीं उनमें है अकल शऊर कि नहीं? सब नु अल्लाह ताला देती है। हाँ शाबाश। तो उन्होंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ लो ਸੀ। हुसैनी साहब इनको जो लामा साहब है ना, इनको इनके अशकाल को दूर करे, हम सुनते हैं। लो दोबारा करो सवाल अल्लामा साहब ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜਰਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮਾਈਕ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ 4-5 ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ। ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਛੁਰੀ ਤੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। और राहील साहब थोड़ी देर ठहरे, जो बात हो रही है वो तो सुन लें। नहीं, मैं काफी देर का इंतजार कर रहा हूँ लामा साहब का। लामा साहब ਮੈਂ से ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मैंने ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ मैंने ਉਸ reference ਬੰਦੇ देना को है। ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। या मैंने लामा साहब से रेफरेंस लेना है। उन्होंने कल चलो एक बात कही है। नो मेरा ख्याल है लामा साहब ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। जी जी अल्लामा साहब, सबसे पहले तो आप रेफरेंस लगाएं। आपने हजरत साहब के बारे में कहा कल कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी तहरीर में ये लिखा है कि हुसैन कस्तूरी की खुशबू के आगे घू का ढेर है। इसका रेफरेंस लगाएंगे पहले मुझे, और उसके बाद सफा 119वीं जिल्द है, जाज़े अहमदी सफा 183 खोलेंगे, वहाँ कसीदे में ये बात लिखी हुई है कि तुम्हारा विर्द हुसैन ही रह गया है, ये इस्लाम पर एक बड़ी भारी मुसीबत है, कस्तूरी की खुशबू के पास ये गूं का ढेर है, वो लिखा हुआ उधर 183। पहले तो नहीं, ऐसे नहीं ना अल्लाह, मतलब पहले आप इसका लगाएं, स्क्रीन पे लगाएं, और दूसरी बात मुझे ये बताएं। पहले वो हवाला लगाएं। रहील साहब, उन्होंने आपको पेज नंबर किताब दे दिया, आप खोलें और पढ़े। अभी और क्या करें? तुसी तो म्यूट करो ना। तुसी अच्छा, मैं म्यूट करो, करना बात चाहिए। करूं। मैं कर सकता, मैं थता नहीं हूँ, मैं बात कर सकता हूँ। अच्छा अल्लामा साहब, आप ना ये लगाएंगे, आप इसकी स्क्रीन शेयर करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपने काफी दफा मैंने आपके मुंह से सुना है कि आपने कहा कि हजरत साहब ने, मैं तो यहाँ पर अलैहिस्सलाम कह सकता हूँ, हजरत साहब ने ये कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने शातमियत अच्छा, ये बड़ी स्क्रीन पे करे, मैं लगा देता हूँ, बड़ी स्क्रीन पे करे, मुझे मैं लगा दूँ। अगर हजरत साहब ने कहीं शातमियत की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कहाँ चले गए? दौड़ गए नहीं? ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਮਾਰੇ ਨੇ ਦੋ ਤੇ ਚੋਪੜੀਆਂ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ screen ਤੇ ਲੱਭ ਕਰੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਹੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋ ਤੇ ਵੀ ਹਵਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਪੜੀਆਂ। ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਆਮ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਹੀਲ अल्लामा ਸਾਹਿਬ साहब जी मौलवी साहब गल करन दियो मैनू। 93 सफ़ा मुझसे गलती हो गई, मैंने पता नहीं 83 या 93 बोल दिया था। 194 सफ़ा है। तुमने हुसैन को तमाम अंबिया से अफजल ठहरा दिया, सच्चाई की हदों से आगे गुजर के अल्लाह देख रहा है, और मुसीबतों और दुखों के वक्त तुम उसी को याद करते हो, गोया हुसैन तुम्हारा रब है। ऐ बदबख्त झूठ बोलने वाले, तुम्हारे उलमा सजदा करने वालों की तरह उसके आगे गिर गए, पास अब मुशरकों या नसरानियों का क्या गुनाह है? तुमने खुदा के जलाल और मुजद को भुला दिया, तुम्हारा विर्द सिर्फ हुसैन है, क्या तो इनकार करता है? बस ये इस्लाम पर एक मुसीबत है, कस्तूरी की खुशबू के पास गूं का डेरा है। अच्छा, ये तो मैं आपको समझाता हूँ, अच्छा सेकंडली मेरी ये बात है, आपके मुंह से मैंने काफी दफा सुना कि हजरत साहब ने, हजरत मिर्जा साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छा शान में- चलो, ये हवाला छोड़ के अब कहीं और जाना है। यार तुसी म्यूट करो। अभी आपने कहा है कि ये हवाला आपने कहा है, वो उन्होंने लगा दिया है, अब आप कहते कहीं और जाना है। अरे टीसी अंकल तुसी म्यूट करो ना। हुसैन साहब मेरियां बातां ਤੁਹਾਡੇ हत्थ ਵਿੱਚ अजीब ਨੇ। आदमी। जी ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ करवाई जे। टीसी अंकल तुसी म्यूट करो। उस्तानी साहब, टीसी साहब को जरा नीचे उतारें। जितनी देर तक ये बात उन दोनों की होती है ना, ये बात करने नहीं देते दरमियान में, तो इनको नीचे उतार अच्छा दें प्लीज। अल्लामा साहब, अच्छा मौलवी साहब तुसी भी म्यूट रखो जरा। ये अल्लामा कौन कह रहा है नीचे उतारे? कोई मिर्जाई है? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ करो गल। जी अल्लामा साहब, मुझे अब ये भी दसें हाँ। कि आपके मुंह से मैंने देख कल भी सुना था मैंने, माना कि कल आपकी गलती नहीं थी, पहल हफीज शेख साहब ने की थी, पहल गलती आपकी कल नहीं थी, मानता हूं मैं, लेकिन उन्होंने साहिबजादा रहील साहब, ये बात आप पहले भी कर चुके हैं। जो आपने एक स्पेसिफिक बात की है ना कि ये शेर जो अरबी का है जिसमें कस्तूरी का मुकाबला है, उसका हुसैनी आपने अंकल कहा, तुसी चुप करो यार, बात करने दो हुसैनी उन्होंने अंकल, तुसी सफा चुप करो। लगाया, उस पे बात करें आप उनके साथ।
हुसैनी मैं अंकल सिर्फ इतना कह रहा हूँ। अब आप लो जी, बात हुसैनी जाने अंकल दो। भी चुप कर जाए, मौली साहब तुम ही चुप कर, तो एक कल ही बोलेगा जी। लो अलामा आप साहब तुसी सारे भी चुप चुप कर कर जो दिए। है बोलन दो यार। जी जी जमील लो साहब मैं आप म्यूट म्यूट कर करें। दूं। है बोलो जी, बोलो जी। जी अल्लामा साहब, आपने काफ़ी मरतबा अपने इसी ज़बान से कहा है कि मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, शातमत की। ये अच्छा, हुसैनी बगैर साहब किसी की ब्रॉड पे कहा है। बगैर किसी रेफरेंस के, बगैर किसी उसके दो सफ़े आगे दो सफ़े पीछे छोड़कर किसी भी रेफरेंस के से अलग हटके अगर उन्होंने डायरेक्ट क्लियर कट कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, अगर उन्होंने क्लियर कट की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, तो मैं आज मिर्ज़ा साहब पे वही फतवा लगाऊंगा जो कुरान लगाता है सूरह कलम में, जो नबी की तौहीन करने पर लगाता है। आज साबित कर देंगे कि मिर्ज़ा साहब ने क्लियर कट तौहीन की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मैं आज मिर्ज़ा साहब पे फतवा लगा दूंगा जो कुरान फतवा लगाता है शातमियत करने वाले पर। मेरी बात खत्म हुई अब यहाँ, और ये सफ़े का मैं आपको बाद में समझाता हूँ, जरा पढ़कर आगे पीछे से। ठीक है, इन दोनों बातों का अलामा साहब बाद में जवाब देंगे, उन्होंने नोट कर लिया, जज़ाकल्लाह। चलो जी, गल शुरू करो जी। यार हीरो हो गई ये बात मुकम्मल हो गई है। नहीं, असल बात यह है कि कई दफ़ा कहा है कि जो दूसरी ब्रॉडरों पे कोई बात होती है वो यहाँ पे डिस्कस न किया करें। यहाँ आपने एक सवाल पूछा, उन्होंने सफ़ा लगा दिया, उसके बाद फिर आप कहीं और भागना शुरू हो गए। ये कोई बात करने का तरीका है? टीसी अंकल तुसी तो चुप करो, तुसी तो खुद 50 साल भाई तुसी बोली जाओ तो असी चुप कर जाइए। लकवा पै गया था आपको बात समझा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही। 50 साल नहीं, ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ- ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਕਵਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, TC ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਬਈ। बम्बास्टर ये तेरा केस है। और भाई मेरी आप जान इसको मैं मरजाई हिजड़ा कहूँ तो वो आप खुश होंगे इस बात पे? यार तू जो तो मर्जी बड़ा अच्छा ना रखे है। मेरा ख्याल है MH कह दें उसको। कह देता हूँ मैं। ये जरा आसान रहेगा। मोहम्मद हुसैनी है ना मैच, ये तो तारिक चौहान टीसी तारिक चौहान से बनता है। हैं? सवाल का जवाब दें। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰ ਛੜਿਆ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਬੋਲਣ ਕਿ ਨਾ ਬੋਲਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਫਿਰ ਹੇਕ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਾ। साहब मेरी सवाल का जवाब देंगे मिर्जा साहब। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਗੁਟਕਾ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ तो ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਬਸ ਕਰ ਭਾਈ। ਜੋ आपने जो पान रखो जनाब, इन्होंने मुझ पान मारनी है यार बंदा यार ਉਹ ਮੇਰੇ रब्बा स्पेसिफिक बात हो तो आदमी को पेश करे ऐसे। अलामा साहब बात को सुनने में बड़ा सब्र रखते हैं, देर तक सुनते हैं, अपने खिलाफ भी सुनते हैं, फजूलियात भी सुन लेते हैं। ये सारी बातें उनमें खूबियां हैं, ये बहुत आला दर्जे की। ये साबित अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसरिल अज़ीज़। तो मैं आज मैं साबित करवा रहा हूं। अच्छा जी, रईस साहब, जी 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 आप रहमतुल लिल आलमीन किसको मानते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई बंदा दावा करे रहमतुल लिल आलमीन का, तो उसको उसके बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में फिर यही ख्याल है कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। अस्तगफिरुल्लाह। बड़ी तेजी ना, बड़ी स्पीड फड़ी है तुसी। बड़ी तेजी ना फैसला दे दिता जे मिर्जा ਉਹ ਪਹਿਲੇ साहब ਵੀ का। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। नहीं 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 ये गलत है, ये गलत है। आप पहले तहरीर लगाएंगे तो बात होगी ना, ऐसे हाँ थोड़ी कि हाँ आप- मैं लगाता हूँ मैं मिर्जा साहब के दिफा का बीड़ा उठाना कोई आसान काम भाईजान नहीं है, बहुत बड़ा है। ना करें, ये भार ना उठाएं। अल्लामा साहब जो मैंने आपसे कहा है आप साबित करें। मिर्जा हाँ साहब मैं ने साबित शादी करता हूँ, की। मैं साबित करता हूँ। मिर्जा तो साहब मैं का आज इल्हाम है, फतवा सुन लें, लगाऊंगा जो सूरह कलम में फतवा कुरान लगाता है, वो फतवा सुन में तो लगाऊंगा। लें, सुन तो लेना। मिर्जा साहब का इल्हाम है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मानते हैं आप मिर्जा साहब को रहमतुल लिल आलमीन? आप सफा लगाएं, स्क्रीन शेयर करें। अच्छा उसका भी भाई सफा साहब लगाओ। ये स्पीड बहुत है, स्पीड बड़ी है। फतवा पहले लगाते हैं, सफा बाद में मांगते हैं। अच्छा चलो ठहर जो सफा निकाल के लगा देते हैं। बल्कि उनका ये भी इल्हाम है, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। हाँ ये भी पूछना है मैंने। पीसी अंकल एक तुसा एक पता करके नहीं ये कि पूछना ये तुसा बोले कहते हैं मैंने फतवा लगाना है मिर्जा साहब पर। अगर फतवा आपने लगाना है तो फिर सुनते जाएं, और कहते हैं ना पढ़ता जा शर्माता जा।
آپ یہ ثابت کر دیں کہ مسیح موعود علیہ السلام نے گستاخی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آج ان پہ قرآن کا فتویٰ لگاتا ہوں. یہ سورہ قلم گستاخی ہے. اللہ میں آپ سے فتویٰ لگاتا پوچھوں ہوں. گا، میں آپ سے کاتب پہلے بھائی، پوچھوں گا کہ کیا یہ گستاخی ہے نبی پاک کے علاوہ اپنے آپ کو رحمت للعالمین کہنا گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ دونوں بالکل فیصلے آپ گستاخی نہیں ہے، کرنے ہیں. لیکن آگے پیچھے ہاں دیکھنا پڑے گا نا، آگے پیچھے دیکھنا پڑے گا نا سر. دیکھ لیں آگے پیچھے یہ الہام اگر ہو وما ارسلنا کا الا رحمۃ للعالمین، تو آگے پیچھے کیا دیکھیں گے آپ؟ اس کے پیچھے کس کیا سینس میں دیکھنا بات ہے؟ کر رہے ہیں، کس سینس میں بات کر رہے ہیں مرزا صاحب، یہ دیکھنا ہے نا. خدا کا کلام، وہ کہتے ہیں مجھے خدا نے کہا ہے کہ ہم نے تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اس کے پیچھے کیا ایسا دیکھنا ہے، کیسے آگے کہہ کیا سکتے ہیں مرزا دیکھنا صاحب؟ ہے؟ ہیں؟ مرزا صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں کہہ سکتے. کیا نہیں ہاں، کہتے؟ اگر میں مرزا صاحب کا یہ الہام پیش کر دوں تذکرہ سے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، تو پھر آج لگ جائے گا فتویٰ کہ اور والے دینے پڑیں گے ایک ایک کر کے. آپ یہ دکھائیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاتمیت کی ہے بغیر کسی دسو جی کیڑا کلیئر سمے کٹ دکھائیں. تذکرے دا؟ یہ شاتمیت ہے کہ نہیں ہے پہلے آپ خود ہی بتا لیں. اگر ہے تو پھر اس کو پڑھ لیتے ہیں، اگر نہیں ہے تو کوئی اور دیکھ لیتے ہیں. کوئی اور دکھا دیں. اچھا یہ شاتمیت نہیں ہے. کہنا نہیں اپنے آپ کو رحمت العالمین کہنا. اے مینو پسند نہیں کہنا، کوئی اور کڈو. آپ کسی اور قرار میں دکھائیں. اے نہیں نا گستاخی. سر آپ کلیئر کٹ کوئی گستاخی دکھا دیں تو ایک کلیئر کٹ والی گستاخی دکھاؤ پہلوان. ابھی رحیل نے کہا ہے کہ اگر کوئی اور شخص کہے کہ میں رحمت العالمین ہوں تو یہ گستاخی ہے. اسی انکل تسی چپ کرو، جیسے 50 سال تک تم خاموش رہے اس تھے کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر لعنت ہے. آپ نے ابھی کہا. کہتا ہے ٹی سی انکل جیسے 50 سال پہلے 50 سال تک تم چپ رہے ہو، ابھی بھی چپ رہو. میں دوبارہ خاموش ہو جا رہا ہوں. او میرے یار ربا، کہتا ہے ٹی سی انکل 50 سال تک چپ رہے ہو نا، تو ابھی کیوں نہیں چپ رہتے؟ ایم ایچ صاحب ابھی آپ نے کہا ہے کہ اس کے اوپر لعنت ہے جو یہ کہتا ہے رحمت العالمین ہوں. تھوڑے منہ سے لعنت ہے ٹی سی انکل. رحیل احمدی صاحب آپ پیدائشی احمدی ہیں؟ حسینی انکل تسی ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ. حسینی انکل تساں لقمہ دینا چھڑ دیو اور میری گل دا جواب دیو. ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੜੀ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ. Who let the dogs out? Who? آپ علامہ صاحب آپ حسینی صاحب دی کلیئر براڑ کٹ ساتھ دی میں ہے دکھا کہ دیں. رہنا. جی میں کہ حسینی صاحب دی براڑ دی ہے انفرادیت. اور یار علامہ بچہ صاحب رحیل احمد تمہاری عمر کیا ہے کاکے؟ 45. ابھی میں 45؟ ابھی پیدا نہیں ہوا. نہیں سیریسلی کتنے سال کے ہو رحیل احمد؟ 27 ایئرس. اور یار 25 پیسہ کا منڈا کھنڈا بچہ چھاڑ دیا. اچھا علامہ صاحب آپ کلیئر کٹ دکھا رہے ہیں یا اسی نہیں تو دکھا بچہ رہے؟ چھاڑنے ہیں اور بچہ نہیں چھاڑ رہا. علامہ صاحب کلیئر کٹ دکھا رہے ہیں آپ شاتمیت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ آپ تو بتائیں دہلی میں میں ابھی ان پہ فتویٰ لگاتا ہوں. آپ دہلی میں پیدا ہوئے ہیں یا کراچی میں؟ اسی تو جرمنی وچ فرینکفرٹ میں. فرینکفرٹ پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں لالو کھیت میں. چپ کرو ہیں؟ حسینی انکل تسی چپ کرو. چلو وہ کہتے ہیں سارے چپ کرو. ٹھیک ہے جی. یہ لیاقت آباد لالو کھیت میں ہے. اس کی نا اس کی گریوٹی میں تھوڑا ایشو آ گیا. علامہ صاحب آپ کہاں نس گئے نے؟ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ. ਖੱਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਤੁਹਾਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਐਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ. ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਗਿੱਲਾ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਤਿੱਤਰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਾਨਤ ਪਾਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ. علامہ صاحب تساں مینوں احمدی سمجھو غیر احمدی سمجھو، ساڈی گل دا جواب دیو، ساڈی جان چھڈو. مطلب آپ کو کیا دکھائیں تو آپ کہیں گے کہ یہ مرزا صاحب نے نبی پاک کی گستاخی کی ہے؟ کیا میں پیش کروں؟ آج یہ مجھے دکھا دیں کہ مرزا صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شاتمیت کی ہو، کوئی گستاخی کی ہو، غلط الفاظ استعمال کیے ہو بغیر کسی ریفرنس کے، تو میں آج مرزا صاحب پہ فتویٰ لگا دوں گا جو کہ قرآن لگاتا ہے سورہ قلم میں. ہاں میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ رحمت للعالمین خود کو کہنا نبی پاک کے بعد یہ گستاخی ہے یا نہیں، پہلے خود بتا لیں. یہ میں دیکھوں گا نا، آگے پیچھے سے دیکھوں گا، آپ کے کہنے سے تھوڑی مان لوں. آگے پیچھے آپ دیکھ لینا پھر آپ، کیونکہ ٹائم ہاں لگے گا آپ کو دیکھنے میں. اس کو دیکھو، یا یہ کہ علامہ صاحب کو ہم صرف اس کو گستاخی مانتے ہیں کہ کوئی عامر حق کی طرح نا
सीधी सीधी गाल कटे सीधी, वो गुस्ताखी होती है। अब पहले गुस्ताखी की तारीफ कर लें भी, ये गुस्ताखी मैं मानूंगा, ये मैं नहीं मानूंगा। हाँ ये गल ठीक है, हाँ गुस्ताखी की तारीफ पहले ए टॉपिक ठीक है भाई, गुस्ताखी केड़ी होंदी है? नहीं, गुस्ताखी जो वो फैसला उन्हें ये करना है कि जो नबी पाक की गुस्ताखी ते उन्हें फतवा लाना है, हाँ। तो मैं गुस्ताखी वहां तो आखने गुस्ताखी है ही नहीं। ये बड़ा मसला ये तो फिर वही ऐसी कोई गुस्ताखी दिखाएं, ऐसी कोई गुस्ताखी दिखाएं जो जमील साहब अक्सर करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हाँ मैं दिखाता हूँ जो मैं करता हूँ। ये पक्का है ये क्या रहे रहील साहब के कोई ऐसी तहरीर दिखाएं जिसमें साथ लिखा हो कि ये गुस्ताखी है, ऐसा आप मुतालबा कर रहे हैं? हाँ वो लिखा भी होना चाहिए। बंदे ने साथ कहा हो जी मैं गुस्ताखी करने लगा जी। लो जी, ये है तज़किरा का 362 सफ़ा। ये मिर्ज़ा साहब के इल्हामात मैंने खोल लिए हैं 1900 के। कैमरा ऑन करके दिखाऊं या ज़बानी? कैमरा ऑन करके दिखाएं सर। अच्छा कैमरा ऑन करके दिखाता हूं। लो जी, यार इतनी फरमाइशें, कहते हैं ना उनकी फरमाइशें, बच्चों की जिद और अपनी शराब। पेज ये नंबर तो क्या, सब, मैं यहाँ खोल लेता हूँ या मैं भी खोलता हूँ, पेज नंबर ये बताना। तो सब याद रहा पर माँ की दवा भूल गया है जी। पेज नंबर क्या है? 362 भाईजान दसे 362 सफ़ा ए मेरे सामने खुलिया तज़किरा। सैनी साहब पीर अस्कानी साहब उत्ते आना चाहते ने। ए तज़किरा खुले है 1900 दे। ए इल्हामात मिर्ज़ा साहब दे लिखे ने। रहील साहब नजर आ? जी जी नजर आ रहा है। ये मिर्ज़ा साहब के तमाम इल्हामात लिखे हैं। पर ये तो अरबी च ने। उर्दू में बताए ना, ट्रांसलेशन करो। नहीं ट्रांसलेशन किसकी कबूल होगी, अभी तो दावत है अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे। ये हो गया जी, तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह कुल इन्नी उमिरतु व अना अव्वलुल मोमिनीन। अल्लाह आपने ऊपर से क्यों नहीं पढ़ा आपने? कहाँ से? ये देखे मिर्ज़ा साहब का इल्हाम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये मिर्ज़ा साहब का इल्हाम नजर आ गया है तज़किरा में। ये किताब मैंने तज़किरा खोली हुई है, 362 सफ़ा है, तो ये सारा तज़किरा है मेरे सामने खुला। माशाल्लाह। ये ना कहना कि मैंने कोई पर्ची पकड़ी हुई है। इसको मैं फ्रंट उसका टाइटल पेज भी दिखा देता हूँ आपको। लो जी, ये तज़किरा है, ठीक है। अब बताओ कि ये मिर्ज़ा साहब को रहमतुल लिल आलमीन आप मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं तो आप पूरा पढ़े ना, पूरा कोई बीच में से एक लाइन पढ़ लें आपने। ओ मेरे रब्बा पूरा पढ़ दिया यार, बस मक्का लगे मैं मानता हूँ। किस तरह का पूरा पढ़ना है? मैं कह दूं कि मैं मानता हूँ ना, तो क्यों नहीं मानता है दस? जालिम नहीं लिखते फिर यहाँ वो कौन सा काम है जो नबी करीम ने किया और हजरत मिर्जा साहब ने नहीं किया? मिर्जा साहब ने तो कहा है वो खातमुन नबीय्यीन भी हैं, वो अहमद भी हैं, वो मोहम्मद भी हैं। हाँ वो तो अक्स है उनका। अक्स जो होता है अपने असल से जुदा तो नहीं ना होता। लो देख लो, यहाँ से शुरू होते हैं मिर्ज़ा साहब के इल्हाम। कहाँ से पढ़ूं मैं? ईसा अलैहिस्सलाम की दादिया नानिया को जीनाकार नहीं कहा सर। वो भी मैं दिखा जीने पे चढ़ चलो अब कहीं और जा रहा है यार, अजीब आदमी। अब वो दिखाऊं? वो कौन सा काम है? दादी नानियों वाला दिखाऊं? तहकीक अरफाना में लिखा हुआ, पढ़ लो। ये मिर्ज़ा साहब का ये तो हो गया ना मिर्ज़ा साहब का दावा रहमतुल लिल आलमीन का। आगे सुनना जरा गौर से बात। ये तो इन पसंद नहीं आई जी, किसी और वैरायटी में दिखाएं। और हम सारे अहमदी रहमत है सबके लिए। और रहील भाई जाके पढ़ लेना आगे वो पेज है। और आइल साहब ये आपको पसंद आई है? हम कहते हैं कि एक मल्लेदारों को मुवासिफ साहब ने पूछा, मुवासिफ साहब ने पूछा कि मिर्जा साहब ने वो कौन सा काम नहीं किया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा की नानिया दादिया को ज़िनाकार नहीं कहा। उस पर मैंने कहा था कि ये मिर्जा साहब ने किया है काम। वो मिर्जा साहब ने भी नहीं कहा, बेवकूफ आदमी। वो बाइबल से रेफरेंस दिया, तेनू आंदा जांदा कुछ नहीं पता नहीं। वो तो तौरात में लिखा हुआ है। कहता मेरी गल ऐसे कहे, तेनू कह जाके पढ़ पहले। रहील साहब अब देखना आपका रहमतुल लिल आलमीन में आपको आपकी आंखों के सामने रखने लगा हूँ। ये अल बदर, ये अल हकम अखबार है, इसकी डेट चेक कर लें। नंबर 34 है, जिल्द नंबर 5 है और सफ़ा इसका 15 है। तारीख इसकी 17 सितंबर 1901 है।
ये मजमून लिखा हुआ है इन्नी मोहीन मन इरादा अहाना तक का नज़ारा। उन्होंने एक बात लिखी हुई है कि गालबन हमारे नाजरीन काजी फजल अहमद कोर्ट इंस्पेक्टर लुधियाना के नाम से वाकिफ होंगे। ये वही शख्स है जिसने हज़रत अक़दस के शान में ख़तरनाक गुस्ताखियाँ की थी और अपनी दरीदा दहनी से मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ एक ऐसी किताब शाया की थी जिस पर अगर गवर्नमेंट तवज्जो करे तो मालूम हो सकता है कि उसके मज़ामीन गवर्नमेंट के मकासद के किस कदर ख़िलाफ़ हैं। इस किताब में हज़रत अक़दस की तौहीन और हतक के लिए उस नाअक़बत अंदेश ने कोई दकीका फ़र्व गुज़ाश्त नहीं किया। हज़रत अक़दस और आपके मुतबईन को हक पहुँचता था कि वो कानूनी चाराजोई करके इस शख्स को इसकी बेबाकियों और दरीदा दहनियों का मज़ा चखाते, और ऐसा ही काजी फजल अहमद की कै चाटने वाले समझते हैं ना, उल्टी जो आप क्या करते हैं, कै चाटने वाले इलाही बख्श अकाउंटेंट लाहौरी जो असाए मूसा का मुसन्नफ है, उसको भी दिखा देते कि एक मुस्लिम मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान और गवर्नमेंट इंग्लिशिया के वफादार और फरमान पजीर ख़ानदान की तौहीन करने का नतीजा ये होता है। मगर रहमतुल लिल आलमीन दुनियावी अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना नहीं चाहता। ये है आपका रहमतुल लिल आलमीन। वाह, मिर्जाइयों का रहमतुल लिल आलमीन नजर आ गया है। मगर रहमतुल लिल आलमीन दुनियावी अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना नहीं चाहता। तो आपका रहमतुल लिल आलमीन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, आगे बढ़े। हाँ, इसलिए उसने इन लगवियात को आगे ही पढ़ रहा हूं ना, इसलिए उसने इन लगवियात की भी परवाह नहीं की, वरना अब तक बहुत से दरीदा दहन अपने किए की सजा पा चुकते। इसी लिहाज से काजी फजल अहमद की गालियों और बदज़बानियों की भी चंदा परवाह ना की गई और उनको ये क्या है, मुंतकम हकीकी ही के सुपुर्द किया गया। आखिर खुदा ताला ने अपने वादे के मुवाफिक जो उसने अपने सादक इमाम से मंदरजा उन्वान अल्फाज में किया था, यानी इन्नी मोहीन मन इरादा हाना, जड़ ऊपर लिखा, इस शख्स को इसकी बदज़बानी की पदाश में सज़ा दे दी। चुनांचे काजी फजल अहमद कोर्ट इंस्पेक्टर को एक मुकदमा जिसने जान बयान में एक मतलब उसकी एक तफसील है लिखी हुई कि उसको सज़ा होगी अदालत से। तो ये आपने देख लिया है कि आप लोग मिर्ज़ा साहब को रहमतुल लिल आलमीन मानते हैं और मिर्ज़ा साहब का इल्हाम है वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। हमारे मुसलमानों के रहमतुल लिल आलमीन सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, गुस्ताखी तो नहीं है ना, ये कोई और चीज़ निकालो, ये तो गुस्ताखी नहीं है ना। अमर साहब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, उसके नतीजे में हम अपनी डोमेन में हम सारे रहमत है सबके लिए, हम अपने आप सारी रहमतुल लिल आलमीन है, मुझे पता है आप सारी रहमतुल लिल आलमीन है। हमें पता है। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ अस्सलाम वालेकुम। हम तो मिर्जा साहब की बात कर रहे ਜੀ हैं। ਅਮਨਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੁਗੜਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਜੋ ਹਲੇ ਉਹ ਰਹੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਜੀ हाँ नहीं, मैं पूछना रहील साहब नु, ये मैं पढ़ता हूं पूरा। ये अल्लामा जी रहील साहब तुसी गल करनी है या मैं थोड़ी जी गल कर सकता? बात ये थी मंसूर साहब गलत करन जो यार। हाँ चलो कर लो कह रहे साहब नहीं जो उन्होंने गल ने उन्हें तशनीकी दूर नहीं हुई है जी। अल्लामा साहब इसका तो मैं आपको जवाब दूंगा पूरा पढ़कर। अच्छा, एक मैंने और बात करनी थी कि मेरे रब्बा मैं केड़े पासे मेरा दिल करदा मैं खुदकशी कर लूं। और कोई गुस्ताखी दिखाओ नबी पाक की, और कोई गुस्ताखी दिखाओ नबी पाक की। आपको यही तो मनवाना है ना? चले दिखाएं और दिखाएं। अच्छा दिखा देते हैं। हुसैनी साहब है, बंदे नु कुचला दे दियो। देखो ये नाम नासिब अल्फाज में जो उसने पढ़ा नहीं है उसको पता नहीं है। कुचला तो खैर अच्छी दवाई है, उस नक्स वोमिका को कहते हैं वो।
राहील भाई एक अच्छा टीसी अंकल जरा मुझे ये बताएं, मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम का एक इल्हाम है वल्ला वल्ला सीधा होया ओला, इसका मुझे मतलब बताएं। टीसी अंकल इसका मुझे मतलब बताएं, वल्ला वल्ला ये सीधा होया एमएच ओला। पूछ रहे हैं मुझसे। बहुत खबीस बच्चा है ये, बहुत ही हरामिया का बच्चा है भाई, बहुत हरामी है, इससे कोई शक नहीं, बहुत कुत्ता किस्म पक्का का हरामी। हजरत मिर्जा साहब का ये इल्हाम है वल्ला वल्ला सीधा होया ओला, इसका मुझे मतलब और बताओ। तेरे मुतलक बताया है कि तुम अवल्ले थे ना तो फिर सीधे हो गए, तो तुम्हारे मुतलक बताया हुआ रही, तुम्हारे जैसे अवलों के मुतलक उन्होंने कहा है। नीचे पीर जी कह रहे हैं मुझे ऊपर ले, आजाद सकानी साहब उनको ऊपर ले लें। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਹਾਂ हाँ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਚੜੋ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛਡਾਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ। ਆਪਣੀ ਲਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੇ सैनी साहब भी नाल सानू ते रहील साहब अब उसको पेश किया है तो वो कहता है मैं घर जाके पढ़ के बताऊंगा। अच्छा भाई अगला वो तो सुनो जाना। भाई, अगला सुन लो भाई। रूहानी खजाइन है, जिल्द 19 है, एजाज अहमद की किताब है, सफ़ा 71 पे कहते हैं उसके लिए यानी मिर्जा साहब नबी पाक को ऐसा मुखातब करते हैं, उसके लिए चांद के खसोफ का निशान जाहिर हुआ और मेरे चांद और सूरज दोनों का। वाह, अब क्या कोई इनकार करेगा? स्क्रीन शेयर करें। स्क्रीन शेयर कर देते, लो जी। वो कहते हैं इसका अगला पिछला भी दिखाएं। अगला भी चांद और सूरज हुए मेरे लिए तारीख दिखा देते हैं जी, अगला भी दिखा देते हैं। सुभान है जे ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੇ ਤਾਰੀਫ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਬਾਰਤ ਪੜੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਾਸ ਨਹੀਂ ਪਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, लेकिन ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ये हमें तो समझ आती है, उन्होंने जो भी लिखा है सही लिखा है। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਟੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਐਮਐਚ ਸਾਹਿਬ ਅਰਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਹੀ ਡਿੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਬਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਰਹੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਹਵਾਲੇ ਦੱਸੋ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਟ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? स्क्रीन शेयर करें। हाँ जी, मैं फ्रॉड कर रहा हूँ। हैं? हाँ जी शुरू हो जाओ हुसैनी ये अंकल, लो वकील जी, आला कैमरा ऑन साहब, करो जी। वकील आला साहब शुरू हो जाओ, अपना काम शुरू करो। और यार तू अपना काम कर, तू लामा ਨੂੰ ਸਹੀ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਲਓ ਬਈ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖ। वकील आला साहब शुरू हो जाओ तुसी। ये लो जी लफ्ज इसके लिए उसके लिए यानी उसके नबी लिए पाक इसके लिए चांद के खसोफ का निशान जाहिर हुआ। कुरान पाक में आयत खातम ओए नबीयीन बंदियां में को अच्छा सैनी साहब है बंदे तो ओए चुप यार, करो। सल्लम तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। ये ओए तर्जुमा यार, किसने किया है? कुछ दूसरे ना बोलो। ये तर्जुमा दूसरे किसने जख्मी किया पे है? मैंने ना दुआले अमर नजीर साहब बताइए। उसके लिए आयत चांद खातम नबीयीन में मैं तुम गल मर्दों करा में से कि ना किसी के करा बाप नहीं है, ये तर्जुमा किसने किया है? कुरान पाक का असलूब है। अल्लामा साहब तुसी अल्लाह गल ताला करो। को भी हम कहते हैं मैं एक की गल करा वहदानियत यार, के तेरे लिए। भरा ही नहीं पे गल करन दे रहील भाई। ओनू छड्डो, तुसी गल करो। ये पढ़ो लहू खसफल कमर, लहू खसफल कमरुल मुनीर व इन्ना ली गसल कमरानिल मुशरिकान अतुनकिर, क्या तो इनकार करेगा कि उसके लिए यानी नबी पाक के लिए चांद के खसोफ का निशान जाहिर हुआ और मेरे लिए चांद और सूरज दोनों का। लो जी, क्या तो इनकार करेगा? ये लो जी, किताब का नाम है 183 सफ़े, किताब का नाम रूहानी खजाइन जिल्द 19 है, किताब का नाम है 183 सफ़े पर एजाज अहमदी ज़मीमा नज़ीरुल मुस्लिम। चलें ठीक है, अल्लामा साहब तुसी म्यूट करो। टीसी अंकल जरा आप इसका फैम पेश करो, उसका क्या फैम है, आगे पीछे जरा आप बताओ। और एमएच तुम अपना हिजड़ापन दिखा रहे हो, तुम्हें नहीं पता इन बातों का हिजड़ापन। अगर तुम हिजड़े थे तो फिर आए क्यों यहाँ पे उनसे पूछने? मैं तो अलामा से हर वक्त बात करता रहता हूँ, तुम यहाँ क्या पंगा लेने आए जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? हजरत मसीह मौला इस्लाम की बेइज्जती कराने आए हो तुम घर से?
टीसी अंकल लग दी लाने दे थोड़े मुंह ते ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਣਾ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ चौहान साहब ਤੁਸੀਂ ਨਾ चौहान साहब रौनक ਤੁਸੀਂ लाइए सैनी साहब ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਿਆ मैच पे आ गया ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ चौहान ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਜੰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੰਬਾਸਟਰ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਬੜਾ हम तो बता देंगे हमें ਨਹੀਂ तो पता ਬਈ है ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਓਹੋ चौहान ਮੈਂ ਤਾਂ साहब ਪਹਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋ चौहान साहब ਤੁਸੀਂ चुप कर दो टीसी अंकल अगर आपको 2 घंटे तक जंबा साहब के साथ छोड़ दिया जाए ना ओए ओए आपको ना उनसे भी ना ना इख्तिलाफ हो ओए जाएगा चौहान साहब ना आपको पंगा ले उनसे भी रहे इख्तिलाफ हो जाएगा रहील साहब चौहान साहब से पंगा नहीं यार आपके जो कादियान जमात के बंदे हैं ना जंबा गिरोह से क्यों आप बात करते हैं कादियान जमात अंकल के अगर आपको 2 लोग हैं घंटे उनसे तक बात जंबा कर लो साहब के आप। साथ छोड़ दिया जाए आप उनसे भी इख्तिलाफ कर और बैठेंगे दिखाऊं नबी पाक की गुस्ताखी और देखनी है नहीं बस बहुत हो गया सर पान लगे पै गई हो, हूँ। फतवा देने लगे ਠੰਡ हो। ਪੈ ਗਈ नहीं फतवा मैं क्यों दे दूं मैं रहील साहब आप अहमदी हैं मैं पूछ सकता हूँ रहील भाई आगे पीछे दे नहीं फतवा पूछ तो सकते आके नहीं नबी पूछ पाक की गुस्ताखी बहाओ तो मैं फतवा मुबासिर देगा साहब ये रहील साहब अहमदी हैं या क्या प्रेजेंट यार एक तो यार भाई बंदे वो ने चुप वही कर है दे जो वो दो कह रहे हैं अगर वो कह रहे हैं अहमदी है तो अहमदी है बस बात नहीं मैंने नहीं गीला सुना ना तितर बता है गीला देना तितर बता देना रहील साहब आप अहमदी हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह बस अहमदी हूं। बात खत्म हो माशाल्लाह माशाल्लाह बात ही खत्म हो लो गल लेकिन खत्म मिर्जा साहब पर सवाल करना मेरा हक है मैं सवाल कर सकता हूँ और इख्तिलाफ भी कर सकता हूँ हाँ तो करो जो मर्जी करो यार मैं तेन किदों क्या नहीं तेरा हक तो जो मर्जी मिर्जा कर साहब ने फरमाया हदीसों में आया है कि 14वीं सदी में इमाम मेहदी जाहिर होगा ये कौन सी हदीस में लिखा है मुझे बताएं कौन बताए कोई हदीस नहीं है झूठ है हमारे हेला कोई हदीस नहीं है लो चुप हो करने बैठ हजरत साहब ने ये फरमाया कि आसमान से सदा आएगी अना मेहंदी हाज़ा रहील का खलीफतुल्लाह बंदा है यार ये आप लोग कोई हदीस नहीं वो भी झूठ है वो भी वो झूठ रहील है। उन्हीं का बंदा है वो उन्हीं का बंदा है खत्म नबूवत वालों का बंदा मैं है अल्लाह का बंदा हूं सर वही सैनी साहब गल बड़ी बदमज़गी ਤੇ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਹ ਰਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਖੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ टीसी नहीं, मेरी दुखी है तो सब मेरी दुखी। क्योंकि जो जमात अहमदिया को बंदा मानता है ना वो कभी भी इस तरह बात नहीं देखो करता, नबी वो पाक की समझ आ जाती है जरूरत हमें। का नबी पाक की जरूरत का इनकार करते हुए मिर्जा साहब कहते हैं अल्लाह ताला कहता है हम भी इन्नी इसी दुनिया में रहते हैं राशिद राणा साहब मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने कहा है मुझे बताएं कि और ये हुन सुन ले गुस्ताखियां सुन हो लो रहा ना फतवा। सुनो ये बात सुनो अल्लाह ताला कहता है इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमिया कह दीजिए कि मैं सारे इंसानों के लिए रसूलुल्लाह बना के भेजा गया। मिर्जा साहब कहते हैं खूब तवज्जो करके सुन लो मिर्जाइयो कि अब इसमें लिखा हुआ मोहम्मद खूब तवज्जो करके सुन लो मर्जाइयो ओ मतलब हुसैनी साहब, अहम दियो आप में भी अहम इंसाफ दियो की कोई रमक है कि नहीं ओ भाई अहम दियो यार अहम दियो हुसैनी साहब आप मुझे बताएं और ये यार सुना गुस्सा रहे ना हैं करया आप, करो। आप में कोई इंसाफ की और रमक है चुप कोई यार कोई गल- इंसाफ की रमक है लो जी इन्हां दी बर्दाश्त ये नहीं अलामा साहब की आगे घुटने टेक दिए सबने ओ यार गल ते कर लैन दो मरजाई कोई गाल नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ने लानतुल्लाह लिखिया मैं मरजाई कहता हूँ अमर नजीर लानतुल्लाह उन्होंने अलल तब्दील का उन्होंने कह दिया तेरे अहमदी कह दिया गंदे यार हो गया और बात। मुनाफा के चेहरे पे हजार हा लानत चलो ठीक है मैं कहता हूँ तुझे मैं चल कह रहा ठीक है। हूँ गाल में कर लो, लानतुल्लाह अलल दो तरह गाला काज़िमीन। भी मामा भैन क्योंकि कर लो। मिर्जा साहब ने कहीं ये नहीं लिखा सुन लो है मर्जाइयो और तुझ पे झूठे पे लानत और तेरी बस, वकालत करने वालों के किया लिए मैं है- दुआ करता हूँ कि किया अल्लाह ताला है उन्हें हिदायत राज दे किया है राज तश्तज़बाम जिसने क्योंकि तुम इस एक नियत का शरारती इंसान हो भाई चुप हजरत कराओ, अली मैं की इन्होंने दस गुस्ताखी समझ करने वाले हो तुम इन्होंने चुप कराओ मैं तो हमारे लिए कहते हो कि मिर्जा साहब की गुस्ताखी हो रही है मिर्जा साहब गुस्ताखी कर रहे हैं उतार दो हुण जुर्रत नहीं सच सुनने की उतार दो आप लोगों में जुर्रत ही नहीं है सच सुनने की उतारो हुण किया है राज तश्तज़बाम जिसने ईसवियत का यही वो हैं यही हैं पक्के मिर्जाई ये किसने लिखा है ਇਹ ਮੁਕਾਮੇ ਮਦਾ ਚ ਹੈ ਮਜ਼ਈ ये ਹੋਣਾ मकामे मदा है या ते तुसी समझो गाल कड्डी है ना कोई इन्होंने गालां पे कटदा है लेकिन अगर नहीं पसंद तो कोई हर्ज नहीं मजई नहीं अहमदी कर लो कोई हर्ज नहीं। अहमदी अल्लाह मैं को तो उससे अभी पहले तक बदल आपने लिया पेश नहीं किया मैं तो उससे पहले बदल लिया है ना। अच्छा रईस साहब सुन लो सुन लेना मेरी बात भी सुने ना मैं आपकी सुन रहा हूँ ना काफी टाइम से मेरी बात सुने आप अल्लामा साहब आपने अभी तक ये कोई ऐसी बात भी पेश नहीं की जिसमें मसीह माऊद हजरत साहब ने हाँ। कि ये कहा हो कहीं भी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बगैर किसी रेफरेंस के आगे पीछे से क्लियर कट कहा हो कि नबी ने ये किया वो किया जैसे बोम्बास्टिक मैं बताने लगा हूँ बताने लगा हूँ कहते हैं बताने या लगा मुल्हिद हूँ कहते हैं सुन लो अगर ऐसा ना साबित करते थे तो मिर्जा साहब पे आज मैं लानत करता हूँ आज तैयारी कर लो अल्लाह ताला ने साबित तो कहा करेगा। कि हमने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे लोगों के लिए तमाम इंसानों के लिए
रसूल बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह। और मिर्जा साहब कहते हैं मगर तुम खूब तवज्जो करके सुन लो अहमदियो कि अब इसमें मोहम्मद की तजल्ली जाहिर करने का वक्त नहीं, अब इसमें मोहम्मद की तजल्ली जाहिर करने का वक्त नहीं, यानी अब जलाली रंग की कोई खिदमत बाकी नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि मुनासिब हद तक वो जलाल जाहिर कर चुका नहीं है अल्लामा साहब है। इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं है जिस पे इशादमियत होती हो। यानी नबी पाक की अब जरूरत नहीं है। नहीं, नबी पाक की जरूरत तो कयामत तक रहेगी, इसमें तो फिर कोई शक नहीं ये है। मिर्जा साहब क्या कह रहे हैं कि खूब तवज्जो करके सुन लो कि इसमें मोहम्मद की तजल्ली जाहिर करने का वक्त नहीं है, अब जलाली रंग की कोई खिदमत बाकी नहीं है। हुसैनी साहब ये हम आगे पीछे से देखेंगे ना कि किस रेफरेंस में मिर्जा साहब बात कर रहे हैं, किस रंग में बात कर रहे हैं। किस रंग में? हाँ, काले काले रंग की स्याही है और 40 नंबर 4 है, सफा नंबर 103 है। हाशिया राय ना करें अल्लामा साहब। रंग ये आपने पूछा ना, काले रंग की स्याही से लिखा हुआ है ना। रूहानी खजाइन जिल्द 17 है, सफा उसका 445 है और 446 है। सफा निकाल के दिखाऊं? कोई ऐसी शादमियत पेश करें जिस तरह आप कहते हैं ना हज़रत ईसा की नानियां दादियां सानियां थी कि मिर्जा साहब ने कहा, इस तरह की कोई शादमियत पेश करेंगे तो मैं आज फतवा लगा देता हूँ, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। किसी और रंग में, किसी और रंग में पेश करें। एक मिनट जरा मैंने मौका दवियो अल्लामा साहब। मैं रोटी खा लम से करो गल में। हाँ ठीक है। बात यह है कि जो आपने मुतालबा किया था ना, वो उन्होंने हवाले पढ़ के सुना दिए हैं। आप जो दावा आप क्या चाह रहे हैं मिर्जा साहब पे फिर मैं लानत कर दूं, फतवा लगा दूं? नहीं, मैं आपको नसीहत करता हूँ। मैंने कल भी ये बात पेश की थी। सुन ले, आप मेरी बात सुन ले हुसैनी अंकल। कल भी मैंने ये बात पेश की थी कि अगर मैं मिर्जा साहब से लाताल्लुकी का इजहार भी कर लूंगा ना, अलीदगी कर लूंगा, मैं कभी उन पे लानत नहीं करूंगा, कभी उन पे इस तरह का तबर्राबाजी नहीं करूंगा, उनसे अलीदगी इख्तियार कर लूंगा। सिर्फ मेरी इतनी सी बात थी। आप ये अभी तक इन्होंने कोई ऐसी बात पेश नहीं की अल्लामा साहब ने जिस पर मैं फतवा लगाऊं उन पर। ठीक है, आपने बात मुकम्मल कर ली है? बात मुकम्मल कर ली है आपने? मुझे इजाजत है? वकील आला साहब जी वकील आला साहब कर लिए। ठीक है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो आप जिम्मेदारी उठा रहे हैं ना कि ये पढ़ के सुनाएं तो मैं मिर्जा साहब पर फतवा लगाऊं, मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है आपके लिए ये लफ्ज़ कहना। ये ना करें आप। ये आपको बहैसियत अहमदी ऐसे लफ्ज़ नहीं कहने चाहिए, ना ये जिम्मेदारी। फतवा लगाता है नबी की तौहीन करने वाले पे कुरान फतवा लगाता है हुसैनी अंकल। नहीं, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ उसको सुन लें थोड़ा। सूरह कलम में अच्छा नहीं सुन, फिर आपकी बात है। चलिए ठीक है। सूरह कलम में कुरान फतवा लगाता है नबी की शादमियत करने वाले। आप काफी भी मिर्जा साहब पे भी वही फतवा लगेगा जो कि मुगीरा पे लगा था सूरह कलम में। इन्ना लिल्लाह। हुसैनी साहब मौजूद हो? जी। और मैं कहा जेड़े मेहमान बुलांदे जे उन्होंने कोई सलाम दुआ कोई तारफ जी बिस्मिल्लाह केड़े मेहमान आए ने जिन्हां दे नाल बरकातो सारे दोस्तां नूं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हुसैनी अंकल आपको पता है कुरान में क्या फतवा लगाया था? नबी की तौहीन करने वाले को हरामज़ादा कहा है, नबी की तौहीन करने वाले को हरामज़ादा कहा है। मैं वही फतवा लगा देता हूँ अगर वो साबित कर देंगे कि मिर्जा साहब ने शादमियत की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। खातम इंसानियत साहब, मैं इन्हां दी खिदमत विच अहमदी दोस्त ने, पैदाइशी अहमदी बच्चे ने। माशाअल्लाह ਉਹ ਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਵਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਚਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ये नहीं करना चाहिए। कुरान फतवा लगाता है, कुरान फतवा लगाता है, सूरह कलम में कुरान फतवा लगाता है। कुरान तो फतवा लगाने वाला कुरान फतवा लगाता है। नहीं, कुरान करीम नहीं फतवा लगाता किसी पे। कुरान करीम में सूरह कलम में खुद ये आयत है कि जो नबी की तौहीन करता है उसे हलाल ज़्यादा नहीं है। कहाँ है वहाँ नबी की तौहीन में तो हलाल ज़्यादा नहीं? कहाँ है ये बात? सूरह कलम पढ़े, सूरह कलम में क्या चीज़ है? अभी पढ़ लेते हैं क्या लिखा है सूरह कलम में। सूरह कलम में वो आयत है ना जिसपे अल्लाह फरमाता है कि पढ़ लेते हैं। अभी आयत याद नहीं आ रही। हुसैनी साहब मैं ना एक शेर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੰਬੀ ਹੈ। हाँ जी, वो एक शेर है थोड़ा जा मज़ाहिया भी है कि उबल कर जोश उल्फत में हुआ हूँ हाफ बाय लंडा। हाँ
ना कच्चा हूँ ना हूँ पक्का, ना गर्म हूँ ना हूँ ठंडा। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ। हाँ जी। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਸਲੇ ਦਲੀਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਉਸਲੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਥੋੜਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵਰਗਰਦਾਨੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਕੁੱਤੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇਰਾ ਕੰਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਪਓ, ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਉਲਫਤ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਉਲਫਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬੁਗਜ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਅਜਾਈ ਹੈ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਇਹਾਨਤ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। हुसैनी अंकल आप कुरान की आयत निकाल रहे हैं? ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਵਿਖਾਓ। ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੌਕਫ ਤੇ ਦੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਫਤਰਾਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਤਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾ ਲਾਓ, ਤਰੱਦਦ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਫੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਫੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾ ਦੱਸਿਆ, ਤਜ਼ਕਰਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ 362 ਦੱਸਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਰੱਦਦ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਮਜ਼ਮੂਨ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਪਗੜੀ ਉਛਾਲਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਗੜੀ ਉਛਾਲਦਾ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਰੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਸਮਝਨੇ ਆ, ਖਾਤਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਵੀ ਸਮਝਨੇ ਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਸਮਝਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਰੂਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਆ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਜਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, मैं उन्होंने कह रहा, उन्होंने फरमाया होया है कि कभी कभी एक खूबरू लड़का मेरे सरहाने आकर मुझे कहता वो माँ अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, तो मैं उन्हें उससे कहता कि क्या कहते हो, ये तो आयत है हुजूर नबी पाक के लिए। वो बार बार यही तकरार करता, मेरी गल पूरी होने दी। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਤਾਬੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਮੂਮਨ ਤੇ ਇਹ ਖਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਾਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਖਫੀਫ ਹੈ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਇਹ ਦਲਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਲਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਤਬੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਰਾਬਰ, ਬਲਕਿ ਰਾਈ ਦੇ ਕਰੋੜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਮਾਹੂ ਅਸ਼ਿੱਦਾਉ ਅਲਲ ਕੁਫਾਰ ਰਹੁਮਾਉ ਬੈਨਹੁਮ, ਜਾਂ ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾਕ ਇल्ला रहमतुल लिल आलमीन, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਇਤਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਲਕਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਕਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕਵੇ کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار میں میرا نام محمد رسول اللہ رکھا گیا ہے، محمد بھی اور رسول بھی، اس آیت میں
محمد رسول اس वही में मेरा नाम मोहम्मद रसूल रखा गया है। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ हाँ वही तो वही है ना, वही तो वही है ना। वमार सलना का ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਪਿਆਰਸ ਕਰਨਾ ਝੱਟ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਡੀਗਰ ਵੇਲੇ ਚ ਢਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਘੋਲ ਘੋਲ ਮਰੀਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੇ ਹੀ ਆਖ ਛੜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਮੰਨਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕੋ ਕਿਹਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕਰ ਚ ਪਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਮਾ ਯੰਤਿਕੁ ਅਨਿਲ ਹਵਾ ਇਨ ਹੁਵ ਇল্লা ਵਹਯੁ ਯੂਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह भी वही हैं जो आपके हैं सर। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਰੱਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ये गलत बयान थे कहाँ पे रहे, ये उनका सिर्फ एक इल्हाम है। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾਵਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਾਲਾ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਹੀ में ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਆਖਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਈ ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਵਹੀ में मेरा नाम मोहम्मद भी रखा गया और रसूल भी रखा गया। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल दुरुस्त ਗੱਲ। आपने कहा है कि मोहम्मद की ਤੇ चीज ਫਿਰ मोहम्मद ਤੁਹਾਡੇ के ਮੁਹੰਮਦ बाकी ਰਸੂਲullah, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਮੰਨੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਓ ਨਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ ਹੈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਰਦੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਜਮੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ਆਪੇ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ पे तरद्दुद अगर मेरे पे पाबंदी है तो मैं नहीं पढ़ता। सूरह कलम निकाल लें हुसैनी अंकल, सूरह कलम निकाल लें, वो आयत पढ़ें जो मैं बोल रहा हूं। वो मैंने निकाल लिया, उसमें तो कोई बात ऐसी नहीं लिखी। नहीं, आमिर नजीर साहब ने तो इस वजह से वो पढ़ के सुनाया क्योंकि राहील किला तितर जो है वो आके उनको चैलेंज कर रहा था कि दिखाएं कहाँ लिखा है। अंकल तुसी चुप करो यार, टीसी अंकल बात करने दो, कोई इल्मी गुफ्तगू करने ये उन्होंने आमिर नजीर ने अपनी मर्जी से नहीं पढ़ के दिखाया, वो उनसे मांगा गया था ये हवाला। टीसी अंकल इल्मी गुफ्तगू करने दो। एक सेकंड जरा साबरी साहब से बात कर सकते हो? साबरी साहब क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है आपकी? आप भी जमात अहमदिया में जमात अहमदिया प्रदेशी अहमदी हैं और जमात अहमदिया का मजाज आप जानते हैं। आप मतलब हमें ये चीजें नजर आती हैं, ये जो साहब हैं, मैं किसी पे कोई फतवा नहीं लगा रहा, लेकिन हमारा ये मजाज नहीं है इस तरह बात कर, जिस तरह रहील साहब बात कर रहे हैं। हमारा ये जमात का मजाज नहीं है इस तरह की गुफ्तगू कर। माजरत के साथ रहील साहब, आप जो भी हैं, मैं आपको फिर भी ये कह रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं, यहाँ जो पैदाइशी अहमदी, जो अच्छे अहमदी मौजूद हैं, मैं आपको बुरा नहीं कह रहा, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आप जो भी हैं एक मिनट मुझे अपनी राय का इजहार करने दें, बीच में ना बोलें। आप जो भी हैं, मुझे नहीं पता आपको किसने खड़ा किया है, क्या साजिश की है, क्या किया है। लोग हैं, मियाँ साहब भी हैं, हम आपका पर्दाफाश करेंगे, ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, गैर अहमदी समझो, मैं कुछ भी नहीं आपको समझ रहा, लेकिन हमारा ये मजाज नहीं है जो आप कर रहे हैं। जवाब दो तो साड़ी जान छड़ो। हाँ, आप टीसी अंकल कह रहे हैं, उनको तौहीन कर रहे हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, वो ऐसे ना करें, वो भी हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने अगर कोई गलत बात नहीं की तो उनको ना छेड़े। जनाब टिकटॉक पे आने से पहले मेरे भी बुजुर्ग थे वो, लेकिन जब आप, मैं सब अहमदियों को कहता हूँ कि आप जो भी आप बात कर रहे हैं ना, हम समझते हैं कि हम अहमदी मौजूद हैं जवाब देने के लिए, लेकिन आप जो जिस तरह अंदाज में आमिर साहब से आप बात कर रहे हैं, ये हमारा तरीकेकार नहीं है ये कहना इस तरह। राना साहब मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ईसा अलैहिस्सलाम की नानिया दादिया को ज़नाकार कहा। आप मुझे बताएं, ये मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का मिजाज है? इस तरह कह सकते हैं कोई आने वाले? नहीं कहा ना उन्होंने, नहीं कहा उन्होंने, ऐसा नहीं कहा। आपको पता है ना उसका क्या जवाब है? पता है आपको? यही मिजाज है अहमदियत का रहील साहब, यही मिजाज है अहमदियत का यार। रहील तुम जो भी हो, मेरी बात सुनो,
نہیں میں جو ہوں چھڑ دو اس کو چھڑ دو، میں جو بھی ہوں، تسی ساڑھے سوالوں کا جواب دو، ساڑی جان چھڑو. راجا یہ بتاؤ جویل مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کچھ نہیں کہا. ایک غلطی کا ازالہ میں نے پڑھا، اس کے اندر سوا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود کنفیوز نظر آ رہے ہیں. کہیں بھی کلیئر کٹ انہوں نے نہ دعویٰ کیا، ایک جگہ دعویٰ کرتے ہیں دوسری جگہ دعوے کا انکار کر دیتے ہیں. ایک غلطی کا ازالے میں نے خود پڑھا ہے، ساری بات سننے کے بعد بھی پورا ایک اگر آپ سمجھتے ہو رحیم، اگر آپ سمجھتے ہو کہ مرزا صاحب غلط ہیں، جھوٹے ہیں، پھر تو آپ کا عامر نذیر کے ساتھ بات کرنا بنتا ہی نہیں. میں نہیں کہتا، نہ مرزا صاحب کو میں غلط کہتا ہوں، نہ ہی میں ان پہ کوئی لعنت کرتا ہوں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں لعنت ڈالوں، لیکن میں نے کبھی لعنت نہیں. لیکن ہماری جماعت کا یہ مزاج نہیں ہے، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. حسین صاحب جتنے بھی مذاکرے کروا لیں، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو روک نہیں سکتا، آپ کریں بات. رانا صاحب میں نے ایک غلطی کا ازالہ نکال دیا. رحیل صاحب ایک گزارش چھوٹی، میں میوٹ کر لوں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ ایک خود کاشتہ پودا ہیں. ایک چھوٹی سی میری گزارش سنیں. یہ جو آپ کہتے ہیں نا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کہا ہے کہ میں خود ہاں میں یہی کہنے لگا ہوں، یہی میں کہنے لگا ہوں. میں بے نقاب کر دوں گا انشاءاللہ. رحیل صاحب یہ جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، ہم یار کوئی بات تو سن لیں. چاچے کا ہمیں نہیں ہے ہم. اور یہ ضروری نہیں کہ ہم حسین عیسیٰ کی براڈ پہ کریں، ہماری اپنی براڈ بھی ہیں. رحیل صاحب آپ کو کر دیں گے انشاءاللہ. رحیل صاحب جتنے حوالے آپ کو دکھا دیے نا رحیل صاحب، اس کے بعد جب آپ مرزا صاحب کو علیہ السلام بولے، ساتھ بول دیا کریں ان کانا مستحقن. یہ جو علیہ السلام علیہ السلام بولتے ہیں نا، ساتھ یہ بھی بول دیا کریں ان کانا مستحق. علامہ صاحب مرزا صاحب علیہ السلام ان کانا مستحقن میں ساتھ بولے نا. یہ تو حسینی انکل کی برادری ہے، تو بول بات کیوں نہیں کر لیتے رحیل؟ حسینی یعنی کہ تم ایک دین سمجھنے آئے مخالف سے، انکل کی برادری پہ ہم تمہارے یعنی کہ تمہارے دین پہ بھی تو نبی کے سلام کو جا کے سمجھو. جس نے رنگیلا رسول لکھی ہے اس سے سوال کرو جا کے. یہ دیکھیں سمجھو جا کے. یہ دیکھیں، یہی تو ہم احمدیوں کا مسئلہ ہے کہ اگر ہم سمجھنے آئے ہیں کہ مجھے سمجھاؤ کہ میرے سامنے کیا لکھا ہے. فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتے ہیں. یہ مزاج ہے جماعت کا. یہ کرو کہ مخالف سے آپ یہ سمجھنے آئے ہیں کہ مرزا صاحب نے کیا لکھا ہے. جماعت کا یہ مزاج نہیں ہے کہ اگر مرزا صاحب پہ کوئی سوال اٹھاتا ہے جماعت کا یہی مزاج ہے. جماعت کا یہی مزاج ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں. رحیم صاحب یہی مزاج ہے. سمجھو کہ مرزا صاحب نے کیا لکھا ہے. مرزا صاحب پہ سوال اٹھاؤ گے، کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوال اٹھاؤ گے. مخالف سے کیوں پوچھ رہے ہو کہ مجھے یہ بتاؤ؟ ایک جاہل مخالف ہے مرزا صاحب کا، جس کو حضرت مسیح علیہ السلام نے جاہل مخالف لکھا ہے. آپ اس سے آگے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو کہ مجھے یہ بتا دیں کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے، اس کا مطلب بتا دیں. وہ تو وہی بتائے گا جو ہندو بتائیں گے نبی وسلم کے بارے میں. جہاں مرزا صاحب نے لکھا ہے میں نے پوری ایک غلطی کا ازالہ پڑھا ہے، اس کے اندر پتہ نہیں چل رہا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی کہ تم ان کی دکھی ہو جو طارق چوہان صاحب نے کہا ہے، ان کو کھڑے کر کے کہ مجھ سے یہ سوال کر لو، تم وہ سوال کیے جا رہے ہو اور اپنے آپ کو اہمیت بھی ظاہر کر رہے ہو. آپ کو یہی نہیں پتا آپ مخالف احمدیت سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ہندو سے جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے. مرزا صاحب خود کنفیوز نظر آئے. نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے کیسے سمجھیں گے؟ ایک جگہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسری جگہ انکار کرتے ہیں. جواب دینا سوال کا. نبی ہوتا ہے یا نبی نہیں ہوتا؟ سمجھیں گے تو کس سے سمجھیں گے؟ جا کے نبی نہیں ہوتا، ہندو سے سمجھیں گے. روزی ڈالڈا اور رائل صاحب نہیں ہوتا، یا تو سوال کا جواب دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو کوئی بات کرنی ہو تو کس سے جا کے سمجھیں خود گے؟ کنفیوز نظر آئے. میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو نا. آپ نبی کے وسلم کو سمجھنا چاہیں تو کس سے جا کے سمجھیں گے؟ کسی مسلمان سے یا کسی ہندو سے؟ کس کی بات کروں؟ مسلمان بھائی سے سمجھوں گا، یہ قرآن سے سمجھوں گا. سمجھو گے تو آپ مرزا صاحب کو سمجھنے آئے ہیں جو ان کا بدترین مخالف ہے. یہ طارق چوہان صاحب بیٹھے ان سے سمجھے کہ وہ کیا کہتے ہیں. پوچھیں ان سے طارق چوہان صاحب سے. یہ ٹی سی انکل تو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں طارق چوہان صاحب. یہ ٹی سی انکل تو خود یہ انہیں شادمیت کرواتے ہیں. یہ تو خود شادمیت کرتے ہیں ٹی سی انکل. ان کا دعویٰ ہے کہ میں مرزا صاحب کو مانتا ہوں. یہ عامر نذیر کا دعویٰ ہے. یہ عامر نذیر صاحب نے
अमन नजीर का दावा है कि मिर्जा साहब को मानते हैं? पहले ये बताएं, है ये दावा उनका? नहीं नहीं, ये तो बदतरीन नहीं है मुखालिफ है दावा। ना मिर्जा साहब तो जिसका ये दावा है बदतरीन उससे मुखालिफ जाके है पूछें। तारिक चौहान भाई साहब साहब। का ये मुझे दावा है, मेरा ये दावा है, ऊपर ऊपर कोई और आ जाएगा उसका ये दावा है। अमन भाई नजीर साहब साहब का मुझे ये ये सब्जेक्ट बताएं, नहीं है ना। मिर्जा साहब खुद और यार कंफ्यूज क्यों हमसे है? पूछो मिर्जा ना। साहब कंफ्यूज है, कहीं वो नबूवत का दावा वो नाइल मेरा पुत्र है, मेरे नबूवत का बच्चे दावा मेरी करते हैं जान एक है। जगह और दूसरी जगह। अटवाल वो नाइल भाई, मेरे बच्चे मेरी जान। अटवाल आप जब मैंने जो अटवाल आपने भाई, जो अपने दलील अटवाल पेश भाई, की है कि अटवाल अगर भाई एक हजरत सेकंड, मोहम्मद सल्लल्लाहु एक मिनट सबर साहब अटवाल एक मिनट ठहर भाई, जाएं, सबर साहब एक मिनट। अगर तो हजरत मोहम्मद ये सल्लल्लाहु अलैहि तरीका वसल्लम नहीं को है समझना फतवे होगा करने का, ये तो तरीका किसी नहीं है। मुसलमान सब से लोग सवाल मिलके करेंगे। अब मुझे तो आपने मुझसे अगर फतवे हजरत लगाना मिर्जा शुरू साहब कर को देंगे, मसीह मौला इस्लाम मुझसे को फतवे समझना लगाना है शुरू कर तो देंगे। किसी आम से सवाल करें या उससे करें जो उनको मानता है। आप एक उस शख्स से मैं सवाल आपसे कर सवाल रहे करता हैं हूँ, सुने जो उनको सुने मानता ही मेरी नहीं बात, है। मैं आपसे सवाल करता हूँ। आप तो अहमदी भाई हो ना मेरे, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मैं आप अहमदी सुन ले हूँ। मेरी बात। हाँ जी, पूछे हाँ क्या मेरी बात बात सुन है। ले आप। हाँ जी, मैंने एक गलती का अदाला पढ़ी, हाँ जी। मुझे उस एक गलती के अदाले में पूरे कंप्लीट पेपर में मिर्जा साहब पूरी जगह कंफ्यूज नजर आए। कहाँ हजरत पे साहब ने कहीं कहा कहाँ कि पे आपको सुन कंफ्यूजन लेना, नजर आया? सुन लेना, सुन भी अब सुनेंगे नहीं ना, सुन लेना हाँ बताए कहाँ भाई। जगह बताए हो ना। सकता है मैं आपसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, हो सकता है मैं आपसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और मिर्जा सर साहब जगह से। बताए आप कहाँ पे कंफ्यूज नजर आए, जगह बताएं। सुन ले मेरी आपने बात, पढ़ी सुनेंगे नहीं तो है वो बताऊंगा ना। किताब, आप सुनेंगे तो बताएंगे, तो बताऊंगा बताए ना। ना कहाँ पे कंफ्यूज है। पूछ रहा हूँ ना कहाँ आप म्यूट कंफ्यूज नजर लगाएंगे आया तो आपको। बताऊंगा ना, आप म्यूट लगाएंगे तो बताऊंगा ना। चले बताएं कहाँ कंफ्यूज नजर मिर्जा आए। साहब, हाँ मिर्जा साहब एक गलती के अजाले में जहां जहां उन्होंने अजाला करने की कोशिश की है वहां पर उन्होंने नबूवत का दावा भी कर दिया। उनकी कहाँ पूरी पे उसमें पूरी सभा किताब में पेश ये करें ना, साबित हुआ सभा कि पेश करें। मोहम्मद की चीज अभी मोहम्मद के पढ़ते हैं, पास दोनों थी, बैठ के पढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ भी समझ में नहीं आया और राहिल मिर्जा साहब साहब अभी की। बैठ के पढ़ते हैं, जालो को कुछ समझ जिस नहीं गलती आता। का अजाला अबू करने आए जहल को भी थे, नबी के सल्लम की बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी, ये देखें तो आपको यही तो मिर्जा बात साहब की है बात समझ कि नहीं आ हजरत रही। भाई आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? आप क्यों जोर लगा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं मैं मेरा सिर्फ आप फोकस इस चीज सवाल पे है। उठाएगा, रहने दे अगर रहने दे हजरत रहने साहब पे दे कोई सवाल रहने दे उठाएगा अच्छा रहने तो राहिल आप नबी साहब, करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलामा पर साहब से जाएंगे। निकाल लें जाके, वो आपको समझाएं कि मिर्जा साहब ने क्या लिखा है, और किसी हिंदू से हजरत जाके साहब पे करें कोई कि हजरत मोहम्मद सवाल सल्लम ने ये उठाएगा क्या तो लिखा है। जाएंगे। अच्छा रहील भाई, एक हजरत ना साहब पे अलामा सवाल साहब से उठाएगा फतवा, कोई, एक अलामा साहब से फतवा ले लें कि अगर किसी ने कहा हो मैं नूह हूँ, मैं आदम हूँ, मैं ऐने मोहम्मद हूँ, उसके ऊपर क्या फतवा मैं लगाएंगे? लानत भेजता हूँ ऐसे शख्स पे, मैं ऐसे शख्स पे लानत भेजता हूँ जो मोहम्मद होने का दावा करता है। आ, ऐने मोहम्मद, अलामा साहब से पूछ लें कि ये इनके ऊपर क्या फतवा, इनके बड़ों ने ये बात। राहील देखें वो लानत करता जा रहा है, वो तो बदबख्त सही है। जो शख्स ये दावा लगता है करता है आमिर तारिक नजीर साहब ने यही बात कर रहा इसको हूँ, प्लांट किया हुआ है यहाँ पे तारिक साहब ये ये बात कर रहा हूँ। मिर्जा साहब की एक गुस्ताखी मिनट करने के राहिल लिए। राहिल जरा रुक जा, राहिल तारिक जरा भाई रुक ये जा। इब्ने अहमद मैं ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ, ਤੁਸੀਂ तारिक ਆਪਣੀਆਂ साहब, ਦੁੱਕੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡ अपनी ਦਿੰਦੇ ਹੋ। दुखी लिया ने और आके उन्हें खड़ी करके उन्हें कहना मेरे को सवाल कर। तारक साहब, चार साहब, ये इब्ने अरबी ने बात की है, ये बस्तामी साहब, भाई अदीस बस्तामी साहब ने ये सेम बात की है। ये ऐसे बदबख्त अजीज बिस्तामी ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? टीसी अंकल कोई हक मुअद्दल है साढ़े, उसकी क्या मिसाल हम देंगे? हमारे लिए कुछ भी नहीं है वो। मगर तारिक साहब देखें कितना तारिक चौहान साहब कितना सादा सा असूल है। असूल ये है कि अगर आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना है, किसी मुसलमान से समझे। आपने अगर हजरत मसीह मौला इस्लाम को अगर समझना मिर्जा है साहब तो उनसे समझे जो उनको मानने का दावा करते हैं। जो बंदा मानने का दावा ही नहीं करता उससे समझने आ गया। मिर्जा साहब मोहम्मद पे नजीर सवाल साहब करेगा, अपनी दुखिया साथ लेके आते ये हैं। मिजाज नहीं जमात, सही ये आपने कहा मिजाज है, नहीं होना चाहिए। आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना दुखी का, बिल्कुल ठीक किया है। जमात कि का ये अहमद मिजाज नजीर नहीं साहब था। एक दुखी तैयार करते हैं, उसे कहते हैं आके तुम मुझसे ये सवाल कर तो मैं तुझे फतवे लगवाऊंगा। ये इनका शेव है अहमद नजीर साहब का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो सवाल भी उनसे कर रहा है जिसके ख्याल नहीं में नहीं नहीं, गुस्ताखी टीसी है, अंकल मेरी बात जो सुने, मानता ही नहीं है। टीसी अंकल मेरी बात सुने। क्लोज एक मिनट मैंने उन्हें तुक्का खाना बोलता रात छड़ के मैं नहीं कहना है कि खाना अगर मैं खाओ, इस बंदे दा खाना खाओ आराम नाल। अगर मैं इस बंदे दा WhatsApp नंबर भी मेरे को लवे, मैं ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਤੇਰਾ ਮਾਈਕ ਫਟਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। कॉल कर लो ना अहमद नजीर साहब, ਲਾਨਤ ਅੱਲਾਹ ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਬੀਨ। आमिर नजीर साहब को आखो मैं तुसी नहीं भी, कॉल जानता। कर लो। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖੋ ਵੀ ਇਹ ਅਮਰ ਦੀ ਦੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਨਤ ਅੱਲਾਹ ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਬੀਨ ਵੀ ਆਖੋ। हाँ तो तारी दुखी है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਦੁੱਕੀ, ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ। ਆमिर नजीर साहब ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ? मेरी बात सुनो, अंकल तारक ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ खुश होना मेरी बात चाहिए। सुनो, दुखी हो अमर साहब। मेरी बात सुनो भाई। अगर मैं सर पे कुरान चुक कर कहता हूँ कि अगर मैं नहीं आमिर नहीं नजीर तूने से मेरे तू प्राइवेट में बात दुखी की है वो ना तो मुना लानत निकाला दुखी चलो है मैं वो आपको ना। ना रहील एक बात का जवाब देता हूँ, एक बात का अभी ना।
अभी जो पूछ ही आप मेरी बात का जवाब देना। अभी जो अगर अभी मिर्जा जो साहब पे कोई सवाल एक उठाएगा तो आप सेकंड एक नबी करीम सेकंड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाएंगे। एक जवाब ले अगर लो, हजरत मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम पे एक कोई चीज सवाल का उठाएगा जवाब ले तो लो नबी ना, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाएंगे। एक चीज का जवाब नबी ले की लो, बात का वसल्लम जवाब। उठाएगा वो काफर हो जाएगा। एक चीज का जवाब ले लो रहील, एक अगर चीज कोई का जवाब हजरत ले लो साहब अलैहिस्सलाम पर सवाल उठाएगा तो मिर्जा नहीं नबी उल्टी करीम बातें सल्लल्लाहु करता है अलैहि आगे। वसल्लम यार, एक दुखी चीज का बन जवाब के ले लो उनकी ना मानता अटवाल क्यों नहीं है कि दुखी है ये तो जमात का मिजाज नहीं है, अटवाल भाई ये एक जमात का सेकंड, मिजाज नहीं है माजरत के एक साथ। चीज का जवाब ले लो रहील। हजरत मिर्जा साहब ने लिखा है कि जो बंदा गैर अल्लाह से मांगता है, ठीक है, वो शिरक है। ठीक है, अल्लाह के अलावा किसी से मांगना, किसी से बेशक मांगना चाहिए ना, किसी से मांगना चाहिए, नहीं चाहिए, बेशक शिरक है। ठीक है। वो आपके पहले सवाल का जवाब मिर्जा साहब का जो आपने पहला सवाल उठाया था, उन्होंने वो लिखा है कि जो कहते हैं कि क़यामत वाले दिन ट्राई हजरत करता हूँ इमाम मैं। हुसैन अंबिया की शफात करेंगे, ठीक है। और ये हेलो। कीदा शिरक है कि नहीं? ठीक है। ये कीदा शिरक है नहीं? अगर हजरत साहब पर कोई सवाल उठाता है तो डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाते हैं। अच्छा ये कोई रहील खाना साहब उनसे समझ आ गई ना हमें आपको? ये सवाल करें आपको ये कि बात समझ आ गई जो ना? औरतों के कपड़े जी जी उतारता है वो हजरत अली करमुल्लाह वजह की सुन्नत है। ये सवाल क्या है नजीर साहब से? अटवाल साहब अपना आमिर माइक नबीर ठीक का जो करके भी अकीदा वापस हो आए सानू आप। कोई फर्क नहीं पैंदा, एक सानू सेकंड कोई रहील भाई, फर्क नहीं पैंदा रहील साहब तो क्या बोल अकीदा है औरतों के बारे में। रहील साहब एक सेकंड, अटवाल साहब आपकी बात बड़ी दिलचस्प है, हम बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे हैं, अपना माइक ठीक कर लें आप, अच्छा आपके मैं माइक कर ठीक लेता हूँ, नहीं, हाँ, हाँ, मैं बड़ी मैं अच्छी कर बात गुफ्तगू कर रहे हैं, आप जारी रखें, जाकल्ला वो माइक ठीक कर लें अपना बस। मैं कर लेता हूँ। आप मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं, अगर कोई हजरत साहब अलैहिस्सलाम पर सवाल उठाता है तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाते हैं उनकी शातमियत करने के लिए। ये जमात का मिजाज है, ये जमात का मिजाज है। तो नहीं मैं कहते लानत भाई, भेजता हूँ ऐसे अकाइद पर जो अल्लाह अगर कोई मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम पर सवाल उठाएगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाएंगे शातमियत करने के लिए। मैं आमिर साहब रहील साहब मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ आपने सवाल उठाना ना किसी एमपी से उठाए, आप उनके मुखालिफ से उठा रहे हैं, आपसे वो आपको उठाता क्या हूँ ना, जवाब देगा? आपसे कह रहा हूँ ना मैं कि मुझे बताएं हजरत साहब अलैहिस्सलाम ने क्यों कहा कि ईसा की नानियां दादियां जानियां थी। आप मुझे इस लाइन बात का पढ़े, जवाब दें क्यों कहा? लाइन निकाले, वो पढ़ते हैं, आ जाए लाइन निकाल। नहीं तो नहीं आपने कहाँ से पढ़ा है? अगर इस वक्त मैं तो यार ये तो बताओ ना, पढ़ा कहाँ से है, लेके आओ ना, दोनों बैठ के पढ़ते हैं यहाँ पे। नहीं ये तहरीर नहीं है मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम की। तो तहरीर है मिर्जा साहब की, आपने यही नहीं देखा कि वो तहरीर किसकी लिखी हुई है? उन्होंने जी उन्होंने से बाइबल को लिखी कोट किया है कि बाइबल में ये लिखा है। तो जरूरत थी इतनी फालतू गुफ्तगू करने की? जरूरत है जरूरत उसकी, थी? क्योंकि मैं बताता हूँ क्या जरूरत थी। जो ये थी कि वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत नापाक हमले कर रहे थे, और जो अगर आप वो किताब पढ़े ना तो मेरे सामने यही लिखा है कि मेरा दिल नहीं करता, मगर जो लोग ये करते हैं मुझे उसके मुकाबले में ये बात क्या नहीं पड़ रही है कि आपकी बाइबल में ये लिखा हुआ है। जरूरत क्या थी? नहीं, असल बात लेवी ये के है जरूरत क्या कि थी? मिर्जा साहब का जो मुकाम है उम्मत में सबसे आला तरीन रूहानी मुकाम रखने वाला शख्स, कामिल तरीन शख्स, उसके मुतल्लिक कोई लौंडा लिपाड़ा आ जाके बताए ये उनको जरूरत थी? एक नबी को इंतहाई बेवकूफाना सवाल है। बयान करने के लिए उनका दूसरे मकाम नबी की देखें शान और में अपनी देखें औकात। नबी करीम सल्लल्लाहु आप अलैहि कह वसल्लम की सकते हैं शान कि को उन्होंने बढ़ाने ऐसा के क्यों लिए लिखा, एक और नबी की आप ये तो कर की सकते हैं मिर्जा साहब कि उनकी तहरीरात को समझने की कोशिश करें, लेकिन उन पर इतराज करें। आपकी औकात है ऐसी? किसी की भी औकात नहीं क्यों है। गिर गए? मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम पादरियों के लेवल तक क्यों पहुंच गए? अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बढ़ानी थी तो एक नबी तुम कौन होते हो ये सवाल उठाने वाले? उनका मकाम किसी देखो अंकल कि क्या किसी को था। चोट लगा, तुम्हारे चुप जैसे करो, बेवकूफ को प्लीज कैसे ये बातें समझ आएंगी कि तुमको मुझे तो किसी समझ अंकल नहीं चुप आ रही? करो आप, फिर तुम ना टीसी पढ़ो अंकल अगर चुप तुम्हें करो समझ आप, नहीं आ रही, तुम्हारे लिए नहीं है वो। टीसी अंकल चुप करो आप, टीसी अंकल चुप, इन्हों थले लाओ, टीसी अंकल चुप करो आप। अच्छा उस वक्त से तुम बकवास कर रहे हो, नबी खुद तुम्हें कुछ नबी पता तो नहीं यार है, किसी बड़े इतराज छोटे से तुम बात किसके करने की ऊपर कर रहे तमीज हो? पैदा करो राइल। नबी करीम अच्छा किसी बड़े छोटे रहील साहब बात करने की तमीज पैदा करें। मसीह माऊद अलैहिस्सलाम की खुद शातमियत करते हैं ये टीसी अंकल, आपने सुना नहीं है क्या? ये क्या कुछ नहीं कहते? मैंने बहुत कुछ सुना है, वो उनको मानने का दावा करते हैं। आपने कुछ सवाल, अगर आप ये सवाल करेंगे कि उन्होंने क्यों लिखा है तो ये आपका सवाल करना बनता नहीं है मेरे बच्चे। आप मुझे ये बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शातमियत करने वाले इंसान जो शातमियत कर रहे थे क्रिश्चियन ईसाई, तो कोई उनके नहीं कर लेवल रहा तक यहाँ पे जाने की जरूरत शातमियत, क्या थी? मुझे बताओ। ये आप पूछ रहे हैं कि जरूरत क्या थी? अगर ईसाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शातमियत कर रहे थे तो मिर्जा साहब को क्या जरूरत थी कि वो भी उनकी किताबों में इस तरह के अल्फाज निकाल के लाने की? और मुझे दिखाते हैं बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है ये। नहीं, ये औकात ही नहीं है कि तुम ये सवाल पूछो, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने कैसे जवाब देना है और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया, मौका महल के मुताबिक दिया, और जो लिखा दुरुस्त लिखा। और हम उसको बिल्कुल ऑन करते हैं, उन्होंने बिल्कुल सही लिखा।
आजकल तो मौका जमात वाले महाल भी के तो बिल्कुल मुताबिक ऐसे लिखना चाहिए मिर्जा था साहब से सवाल कोई उठाता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शातियत करते हैं। हाँ तो जमात तुम वाले जाओ बिल्कुल ठीक करते हैं। शातमियत का रौला डालते रहो, हमें उससे क्या। यानी हम तो जमात वाले कहते हैं बिल्कुल जो ठीक उन्होंने करते दुरुस्त हैं, अगर लिखा कोई है। मिर्जा साहब पे सवाल उठाता है तो वो नबी की शातियत करते हैं, अगर मिर्जा साहब पे कोई सवाल हाँ तो उठाता है करते तो नबी रहे, करीम हमें सल्लल्लाहु उससे अलैहि क्या। वसल्लम की शातियत करते हैं। मिर्जा साहब ने खुद बिल्कुल सही लिखा है कहते हैं। कि अगर हक वाले बयान जमात करने वाले से गालियां निकालना है तो हम क्या आपकी हक बयान तालीमात करने में से रुक जाएंगे? हम बयान करेंगे, आपकी वो गालियां तालीमातों में निकालता है तो निकालता ये रहे। नहीं मोहब्बत के साथ ये तालीमात नहीं है मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम की। अगर उन पे कोई भाई सवाल तुम्हें उठाएगा क्या तो पता, तुम्हें क्या पता इन बातों का? तुम तो समझते ही नहीं हो कि मिर्जा साहब का मुकाम क्या था। मिर्जा साहब का मकाम आपसे ज्यादा मैं बारिश समझ की सकता तरह हूँ। उनको अल्लाह ताला की तरफ से वही होती थी। तुम्हें कभी वही हुई है कि तुम उठ के तो उनके ऊपर एतराज करना शुरू कर दो? तुम ये कसम कर सकते हो कि आप तुम मुझे समझने की कोशिश करो सुन लें, कि उन्होंने ऐसी क्या दोस्ती लिखा कर है, लें। उनका क्या मतलब था, ताकि तुम्हारी अपनी देखिए तरक्की अंकल हो, दोस्ती कर लें। इल्मी रूहानी तरक्की हो। इतराज करोगे तो सुन ले मेरी बात, जो सुन ले पहले ना तुम्हारे देखो। पास है उससे भी अच्छा दोस्ती जाओगे। कर ले, सुन ले मेरी बात, दोस्ती कर ले, सुन ले मेरी बात। अगर अगर ईसाई सुन तो ले, सुन तो ले, अच्छा सुन ले ना, सुन ले। अगर ईसाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलैहिस्सलाम को उनके लेवल पे गिरने की जरूरत क्या थी? एक उन्होंने नबी को जो बचाने किया के लिए दुरुस्त दूसरे नबी किया, की शातियत तुम्हें कर। समझ नहीं ना आ रही तो तुम अपनी अकल का मुझे इलाज जवाब कराओ। दीजिए बस, उन्होंने अपने जो फहम किया से बिल्कुल बताइए। दुरुस्त किया, मौका महाल के हिसाब से सही जवाब दिया उन्होंने। और अब भी हम यही जवाब देंगे ईसाइयों को जब वो करेंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी। और देते भी हैं, हम कुछ से डरते हैं? जो जमात कोई वाले आगे से गालियां निकालता है, निकाले, हमें क्या। अच्छा चौहान साहब सुने, अब जब कोई मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम पे सवाल उठाता है तो जमात वाले फिर सही करते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जमात शातियत वाले करते क्या हैं? करते हैं, इसका मुझे मतलब उससे यही है। गरज नहीं है। मिर्जा साहब ने जो लिखा बिल्कुल दुरुस्त लिखा, मौका महाल के मुताबिक लिखा, और कसरे सलीब करना उनका मिशन था। और उन्होंने ऐसी कसरे सलीब की कि मिर्जाई अब तक वो उठ नहीं सके। हाँ और बढ़ उनके गए, खुदा और बढ़ को गए, मिर्जा साहब ने ज्यादा हो मार गए, के मोहल्ला और बढ़ गए, खानियार में और ज्यादा ज्यादा डाल हो दिया, गए। जिसके ऊपर वो कहते थे कि वो हमारे गुनाहों को ले गया। मिर्जा साहब ने कहा तुम्हारा खुदा वो मरा पड़ा हुआ है। इससे बड़ी मसीह माऊद ईसाइयत की अलैहिस्सलाम ने कसरे सलीब कोई और ईसा हो को सकती मारने है? के अलावा और कुछ नहीं किया। मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने ईसा अलैहिस्सलाम की, अगर हम ईसा अभी तुम्हें अलैहिस्सलाम अकल नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आई तो तुम्हारी समझ का कसूर है। उन्होंने तो बिल्कुल दुरुस्त किया जो भी किया। आज भी हम कहते हैं कि दुरुस्त किया उन्होंने। कौन सी हदीस है? किसी को कोई तकलीफ है तो वो अपनी तकलीफ का इलाज करे, मिर्जा साहब पे इतराज ना करे। कौन सी हदीस है जिसमें 14वीं सदी का हदीसों की तो कोई मिर्जा साहब ने तो कहा हदीसों की कोई वक़्त ही नहीं है। जिस ढेर को मैं चाहूं सही करार दूं, जिस ढेर को चाहूं रद्द कर दूं, तो हदीसों की बात ही नहीं हो सकती उनके साथ। तुम्हें पता ही नहीं कि मिर्जा साहब का मुकाम क्या था। ठंडी साल हो तुम इसके मुतालिक क्या बात कर सकते हो? आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, एक नबी को बचाने के लिए दूसरे नबी की किरदारकशी क्यों की? और तुम्हें क्या इससे? जो शख्स इस चीज के लिए मामूर हुआ है, अल्लाह ताला की तरफ से वही पाकर काम कर रहा है, उसको पता है ना कैसे जवाब देना। तुम्हें क्या पता? मसीह माऊद अलैहिस्सलाम जिसके मसील बनकर आए थे उसी को गाला कटवा। और तो तुम्हें तो इन बातों की समझ नहीं है ना। उन्होंने जो भी जवाब दिया बिल्कुल दुरुस्त दिया। आज भी हम कहते हैं कि उन्होंने दुरुस्त जवाब दिया, और आज भी ऐसा हमला होगा तो हम ऐसे जवाब देंगे। अब ये जो मसाइल हैं इनका हल फिर अल्लामा साहब से समझना ना आपने। हाँ ये है, समझ उनसे समझो तो उनसे समझ लो फिर, ठीक है। यही चाह रहे हैं ना कि गलती का अदाला में वो कंफ्यूज नजर आते हैं। इस बात का हल आपने निकालना है, समझना है अल्लामा साहब से तो समझ ले, ठीक है। इनको मौका नहीं। चौहान साहब ताला मैंने पढ़ी है, ये गलती का ताला मैंने पढ़ी। सुन ले हुसैनी अंकल, तुसी सुन लो जरा, तुसी बीच में लुकमा दे के सारी बात खराब कर दी। हुसैनी अंकल बात ये है कि एक गलती का ताला मैंने पढ़ी के अंदर मिर्जा साहब टोटली कंफ्यूज नजर आए। कहीं उन्होंने अदालत जिस गलती का अदाला कर रहे थे वही दावा दोबारा कर दिया, और एंड में सिर्फ एक ही बात समझ में आई है कि मोहम्मद की चीज मोहम्मद के पास रही, इसके अलावा बड़ा सही नतीजा निकाला आपने, बहुत अच्छी बात की आप। हाँ तो बहुत अच्छा किया आपने, ठीक समझ गए। कलम तो निकाल मेरे कहने बस मैं ये एक तो कह रहे हो कि मैं उनको मानने वाला हूँ, फिर उनको कह रहे हैं कि वो कंफ्यूज हैं। तो क्यों ऐसे शख्स को तुम मानते हो? मेहरबानी करो हमारे ऊपर, ना मानो उनको।
चौहान साहब जज्बाती ना हो, चौहान साहब जज्बाती ये ना हक हो। के सवाल उठाने का डेमोक्रेसी है। अगर इस कंट्री में एक रहता हूँ ना गलती मैं, का यहाँ की डेमोक्रेसी है। एक यहाँ पे गलती का जाला का इस खुलासा कंट्री चौहान में साहब रहता आप हूँ, डेमोक्रेसी है, मुझे हक है। ये पाकिस्तान ऐसा नहीं कर है सकता हूँ, एक बिल्कुल। मिनट रहील चुप कर, रहील आप तो चुप खुलासा करें सुनो, जरा। ये आपका खुलासा खुलासा सुनो। सुना दे एक सुन गलती का जाला का। ले एक एक गलती मिनट का रहील जाला सुनना, है। जरा खुलासा सुनना, दो हाँ, दो मिनट के अंदर ये बयान ਤੁਹਾਡਾ करेगा। पाकिस्तान नहीं है, ये ਤੁਹਾਡਾ पाकिस्तान नहीं है, सवाल उठाने की हक नहीं है हमें। ये ਤੁਹਾਡਾ पाकिस्तान नहीं है, जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ सवाल उठाने का हक है, यहाँ मैं उठा सकता हूँ सवाल। ये और ਤੁਹਾਡਾ भाई तुम पाकिस्तान नहीं सवाल है। जितने मर्जी उठाते रहो, लेकिन जब तुम सवाल इस तरीके से उठाओगे कि मिर्जा साहब कंफ्यूज हैं, तो इसका मतलब है कि तुमने मिर्जा साहब का इनकार कर दिया, तुम उनके मुकाम को पहचाने ही नहीं हो, वो सही कह तो रहा तुम्हें है, हक कोई ही भी नहीं कि उनकी किताबें पढ़ो। कोई भी नया ऐसे बंदा कंफ्यूज होगा शख्स वो को कि यही तुम क्यों कहेगा। पढ़ते हो, तुम्हारा तो वो कुछ नहीं लगता। चौहान साहब, चौहान साहब, हमें कहा कोई गया भी था नया सिर्फ कुरान बच्चा पढ़ो, होगा वो यही कहेगा कि ये हमें कहा गया कंफ्यूज था हाँ, कुरान तो पढ़ो, कंफ्यूज है तो हदीस ठीक है। हम कब कहते हैं भी मिर्जा इतने साहब सारे की लोग किताब मिर्जा जैसे साहब के पढ़ना शुरू मुनकरीन हैं, जहन्नम में जा रहे हैं इस वजह से, तो तुम भी उनके साथ मिल जाओ। उनके पैरोकार भी तो कंफ्यूज हैं कि नहीं एक गलती का जाला को लेकर? नहीं, हम बताएं तो आप। कोई नहीं कंफ्यूज। नहीं आप नहीं, कादियानी कंफ्यूज हैं कि नहीं? बिल्कुल हाँ, तो confuse वो है। तो हम तो समझते हैं कि वो उनके मानने वाले ही नहीं है। नहीं, एक गलती का जाला से जो आप खुलासा बयान करने लगे हैं, हाँ। ये खिलाफत ग्रुप भी वही मानी बयान करेगी? नहीं, वो जो मर्जी बयान करें। नहीं, मैं तो वैसे आपका और उनका फहम सेम है एक गलती का जाला के बारे में? नहीं, सेम नहीं है। सेम नहीं है। इसका एक मिनट रही, एक मिनट, इसका मतलब ये है अगर आप कुछ और मानी निकालते, 12 सफ़े का टोटल साहब ने जो कुछ लिखा हुआ है, आप उससे कुछ और नतीजा अखज़ करते हैं, हाँ। लाहौरी कुछ और अखज़ करते हैं, कादियान खिलाफत ग्रुप कुछ और अखज़ करती है। इसका मतलब तो सही वो कह रहा है कि मिर्जा साहब ने जो तहरीर लिखी है वो कंफ्यूजिंग है। नहीं, समझ नहीं ये आती इससे क्या ये लिखा है। नतीजा नहीं निकलता। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले आए थे, कुरान मजीद 1400 साल पहले आया है। आज भी सारे मुसलमान कंफ्यूज्ड हैं ना, इसीलिए मुख्तलिफ फिरके उन्होंने बनाए हुए हैं, आयात से मुख्तलिफ तर्जमे निकालते हैं। हाँ हाँ, तो इसका मतलब है कुरान का दूसरी कसूर ज़बान- नहीं है, दूसरी ये जो ज़बानों की- कंफ्यूज्ड लोग हैं उनका कसूर है। मेरी बात सुनने, वो तो दूसरी जबानों में है, ये तो इनकी मादरी जबान है, उर्दू में लिखा हुआ एक गलती का हाँ, जाला। मादरी जुबान में बेशक हो, उर्दू कुरान मजीद के उर्दू में तर्जमे नहीं हुए, लेकिन वो तर्जमे भी मुख्तलिफ हैं, नहीं, तर्जमा क्योंकि करते हर हुए किसी तो को वो बात मुस्लिम ही नहीं समझ आ रह रही जाती, है। तर्जमा करते लोग हुए। कंफ्यूज्ड हैं कि कुरान का असल पैगाम क्या है। नहीं तो लोगों वो को पता उनकी दिमाग का कसूर है, कुरान का कसूर नहीं है। अंकल इसी तरह मिर्जा साहब ने तो बड़ी क्लियर बातें की हुई हैं, फिर भी कोई कंफ्यूज है तो उसके दिमाग का कसूर है, मिर्जा साहब का कसूर तो नहीं। अच्छा, जो क्लियर बातें ये की सवाल हुई उठाने हैं, का पूरा मेरी हक बात है। सुनो। कितने लोगों को सवाल समझ उठाने आई का है वो पूरा क्लियर हक है। बात? एक गलती का जाला कितने लोगों को सही पता है उसका माने? वो मुझे पूरा right 200 है सवाल आदमियों उठाने का। हैं? आपका पाकिस्तान 200 नहीं है। आदमियों को। सिर्फ 200 आदमियों को एक गलती का जाला समझ आया है? हाँ जी, बिल्कुल। बाकी सारा ये समझ तो आ गया ना, इसका मतलब उसका कसूर नहीं है, कसूर लोगों का है। सबकी अपनी नफसानी ख्वाहिशें हैं जो उसके हिसाब से वो तर्जमे करते हैं। इसी तरीके से कुरान के साथ हो रहा है, 20 हर कोई करोड़ अपनी तलबा, मर्जी के मुताबिक तर्जमा करना चाहता है ताकि उसके फवायद उसको मिले। जिस उस्ताद के 20 करोड़ स्टूडेंट हों उसमें से 200 स्टूडेंट पास हों, सबसे ज्यादा हाँ। कंफ्यूज तो उस्ताद का कसूर है कि शागिर्दों का? नहीं, उस्ताद का कोई कसूर नहीं, स्टूडेंट्स का कसूर है। 20 ऐसे करोड़ जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी हैं, यानी 95% लोग जहन्नमी हैं जो अपने आप को मुसलमान कह रहे तो वो हैं। किस तो एक वजह से? वहीद है ना। किस वजह से? भाई वो कि इसलिए अल्लाह नहीं है और कि उसके उनको समझ- रसूल और उसके सहाबा की तर्ज मस्तियां को छोड़ करने की चुके हैं। वजह से, भाई वो तो शैतान पहले दिन से। हाँ, तो मेरी बात शैतान सुने, मेरी बात सुने। तो आपने खुद ही नबी जवाब पाक दे तो- दिया फिर। नबी पाक तो आज से 1400 साल पहले आए ना। शैतान ने पहले दिन वादा किया था कि मैं तेरी इस मखलूक को, मैं इंसान को गुमराह करूंगा, इनके आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, और क्यामत के दिन 999 जहन्नम में जाएंगे। सदके जावा, बस यही गल है। अभी आपने कहा 200 किमें हो गया, तो इसका मतलब नहीं, 99% जहन्नम में जाएंगे, तो 1% ही सही होंगे ना। चौहान साहब मेरी बात सुने ना, कलीलुम मिन उसका- इबादिश-शुकूर। बात तो सुन लें। उसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को अल्लाह का पैगाम समझ नहीं आया, उसका मतलब ये है कि लोग अपनी नफसानी ख्वाहिश के पीछे दौड़ रहे हैं। हाँ, तो जिनको कंफ्यूज है ना, जो एक गलती का दालत है, वो अपनी ख्वाहिशों के पीछे दौड़ रहे हैं, इस वजह से कंफ्यूज। ये मिर्जा साहब की तहरीर में कंफ्यूजन नहीं है। ये नफसानी ख्वाहिश के पीछे दौड़ रहे हैं। हाँ जी, नफसानी ख्वाहिश इनकी क्या है? इनको है कि मिर्जा साहब को हम जबरदस्ती नबी बना दें और अपनी गद्दी चलाएं, खिलाफत की गद्दी। ये इनकी नफसानी ख्वाहिश है, इस वजह से वो कंफ्यूज है। लाइन पे आ गई है ये। तो मिर्जा साहब ने तो कहा ही नहीं कि मैं नबी हूँ। वो खुद मिर्जा साहब ने मिर्जा अगर साहब ने नहीं तो कहा, कहा ना नया नबी आ सकता है ना पुराना।
لیکن کنفیوز ہے نا ان کو نبی بنانے کے چکر میں، اس وجہ سے انہوں نے ایسا غلو کیا ان کی ذات کے متعلق. تو یہ وجہ ہوتی ہے، آپ نے خود ہی بتا دیا کہ یہ نفسانی خواہشات ہوتی ہیں جو کنفیوز کرتی ہیں انسان میری کو. بات وہاں پر تعلیم کلیئر ہے، یہاں بھی تعلیم کلیئر ہے. اللہ تعالیٰ نے مرزا کہا صاحب نے صرف اتنا کہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آتا، مکالمہ مخاطبہ الہیہ وہ جاری ہے، اور جو پاک اور معمور ہو جائے وہ مجدد ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک ہے. اتنی سی بات ہے بس. ایک 10 سیکنڈ کا منو بھی موقع دے دیا کرو. اللہ تعالیٰ کا پیغام بالکل کرسٹل اینڈ کلیئر ہے. زنا کے قریب نہ جانا، چوری کے قریب نہ جانا، فحاشی کے قریب نہ جانا، لوگوں کا مال نہ کھانا، ہاں جی بدنام نہ کرنا، شراب نہ پینا، جوا نہ کھیلنا، حرام مال نہ اکٹھا کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، کلیئر ہے. لیکن ان سب باتوں کو لوگ برائی سمجھ کر اپنی خواہش کے لیے وہ کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آیا ہے کہ زنا کا کیا مطلب ہے، شراب کا کیا مطلب ہے، جوئے کا کیا مطلب ہے، خنزیر کے گوشت، یہ نہیں کہ ان کو کنفیوژن ہے. نہیں تو جب وہ کہتے ہیں کہ وہابی کا ذبح کیا ہوا کھانا حرام ہے تو وہ کہاں سے وہ دلیل لے رہے ہوتے ہیں؟ میں بتاتا مجھے بات مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ نبی کی تعلیم خراب ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ایک غلطی کا ازالہ نہیں سمجھ پائے، کیا یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ایک غلطی کے ازالہ میں کیا کہے گے، اس کے باوجود وہ جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں حرکت؟ جی جان بوجھ کے کریں. اب دیکھیں نا، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص کو اوپر نبی کے نام کا اطلاق بھی جائز نہیں جب تک اس کو امتی نہ کہا جائے. لیکن جماعت احمدیہ والے کہتے ہیں مرزا صاحب کو امتی کہنا کفر عظیم 50 ہے، سال تک تو آپ خود کنفیوز رہے ہو، کیونکہ وہ مرزا صاحب تو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آئے ہیں. اگر آپ اس کو امتی کہیں گے تو کفر عظیم ہو جائے گا. اس کے پیچھے کیا ہے؟ نفسانی خواہش نہیں تو اور کیا ہے؟ رحیل صاحب کا سوال یہ ہے، چوہان صاحب آپ کے لیے، آپ کتنے سال تک ایک غلطی کا ازالہ کو لے کر خود کنفیوز رہے ہیں اور نبی مانتے رہے؟ کتنے سال؟ 50 سال ابھی پتہ لگ جاتا ہے، لقمہ پڑا رہے ان کے منہ پہ 50 سال تک. دیو جی چوہان صاحب جواب، ادھر نفسانی خواہش میں مبتلا ہو کہ تو سمجھ نہیں سی آ رہی. کچھ نہیں تھا ان کے منہ پہ. اگر یہ سوال درست مانا جائے تو پھر مرزا صاحب 50 سال کنفیوز رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان بٹھا یہ آتا ہے ان کو، وہ کیسے کنفیوز رہے؟ انہوں نے 10,000 دفعہ قرآن پڑھا تھا، ان کو 30 آیتیں نہیں نظر آئیں قرآن کی، وہ تو اس وجہ سے نہیں نظر آئیں. وہ تو ریل پہلے کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب کنفیوز ہیں، ایک غلطی کا ازالہ کچھ سمجھ نہیں آتی کیا لکھا ہوا ہے. تو نہیں، مرزا صاحب کنفیوز نہیں ہو. مرزا صاحب نے کہا ہے مجھے جب اللہ تعالیٰ نے وحی سے بتایا تو میں نے اپنا جو عقیدہ تھا بدل دیا، اسی طرح جب مجھے سمجھ آئی تو میں نے اپنا بدل دیا. تو یہ کہنا کہ جی تو پہلے غلط تھا اس دفعہ سے تو ہمیشہ غلط ہی رہی، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے تو اس کو یہ تانا دیا جائے گا کہ تو پہلے کیوں تھا یہ. اب جتنے بت پرست تھے جو کافر مشرک تھے بعد میں مسلمان ہوئے، ان کو تانا دیا جائے تم تو پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے، لات منات کی. نہیں ہم تانا نہیں دے رہے چوہان صاحب، ہم یہ تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی سوال کہ جی تو پہلے 50 سال کنفیوز رہا تو ٹھیک ہو گیا تھا، مطلب تو ان کو کنفیوز ہی رہنا چاہیے. سوال صرف اتنا ہے کہ آپ اس وقت نفسانی خواہش میں مبتلا تھے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. نہیں، اس وقت بے علمی کی حالت تھی، جاہلیت کی حالت تھی. کچھ لوگ جاہلیت کی وجہ سے غلط پیغام سمجھتے ہیں، کچھ لوگ نفسانی خواہشات کی وجہ سے. نفسانی خواہش والے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے پیغام کو پروپیگیٹ کرتے ہیں، اور جو جاہل ہوتے ہیں جو خود نہیں پڑھنا چاہتے یا پڑھ سکتے وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب منبع نفسانی خواہش ہی ہوتا ہے. لیکن سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی جاہلیت کی وجہ سے پیچھے لگے ہوتے ہیں. آپ پروپیگیٹ کیا کرتے تھے فیس بک پر، واٹس ایپ پر کیا کرتے تھے مرزا صاحب کو نبی منوانے کے لیے؟ ہاں کرتا تھا، میں تقرینہ بھی کرتا تھا بلکہ. ہاں تو اس وقت آپ نفسانی خواہش میں مبتلا تھے کہ؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، میں اس وقت جاہلیت میں تھا. نفسانی خواہش والوں نے مجھے اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا. تو ان کو بھی جاہل کہہ لینا، ان کو یہ تو نہ کہ یہ نفسانی خواہش میں مبتلا ہے. میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا، میں اس کو جاہل ہی کہہ رہا ہوں. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ تم جاہل، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ مرزا صاحب کا مقام کیا ہے. تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ ان پر یہ اعتراض کرو. نہیں میری بات سنیں، میں یہ نہیں اس کو کہہ رہا کہ تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ تم یہ کو ایسا انہوں نے کیوں لکھا، یہ آپ بات نہیں کر سکتے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے، میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا جیسا انہوں نے لکھا. اگر پہلے سے آپ کہیں کہ انہوں نے لکھا ہی ان کا دماغ ہی ٹھیک نہیں تھا تو وہاں سے آپ کو کیا ملے گا؟
चौहान साहब, समझने आप की बात कोशिश एक करूंगा दूसरी तरफ उससे देखें। जो सबसे मैं बड़ा मुखालिफ है। मैं इनकी कह रहा हूँ अठवाल साहब की कि अगर इनको एक गलती का मेरे ज़ाला बात समझ नहीं आ रामा रहा, साहब मेरी बात ना बीच में अगर लेके ये आप मेरे मिर्जा दुखी साहब को हैं। नबी मान रहे हैं, अमन सारा नजीर साहब खिलाफत मेरी ग्रुप, बात ना लेके मेरा नाम ना लें, आप अच्छा मेरे ठीक दुखी है, हैं। चले इनका नाम लिए तो बगैर। वो अमन अपना नजीर साहब जवाब आप खुद मेरे दे देंगे। दुखी हैं। ये जाहिल कह लें इनको, इनको समझ नहीं आ रही एक गलती का ज़ाला। अमन नजीर साहब आप मेरी दुखी हैं, आप ये बात ना करें। मैं दुखी है। हाँ जी, आपकी दुखी राहिल एक है, आप गलती मेरे का दुखी अदाला हैं। 12 का पेज है, एक गलती हैं का चौहान अदाला 12 साहब, का पेज है, इसमें मिर्जा इन्होंने साहब ने जाहिल किस गलती का समझो, अदाला इन्होंने किया नफसानी मुझे ख्वाहिश का मरीज ना समझो है। जी मैंने आपको यही बताया कि नफसानी ख्वाहिश वाले जो होते हैं ना, वो मिर्जा साहब जाहिलों को अपना अलैहिस्सलाम पीछे ने लगा किस लेते हैं। गलती का हम भी अदाला लगे किया हुए थे, 12 मैं के तो पेज मानता हूँ इस चीज को, इस चीज का मैं बार बार इकरार भी करता हूँ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ कि ਨਹੀਂ मैं भी ਸਮਝਾਇਆ ऐसे लोगों में था। सैनी साहब ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੋ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। पता नहीं ये दसोगे जो क्या रहे हैं। दुखी नहीं है, दुखी ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ दुखी कह रहे हैं, दुखी नहीं ਇਹ कह रहे। ਜਿਹੜੀ दुखी दुखी ਹੁਕਮ ਦੀ ਦੁਖੀ ਵੇਖੀ ਜੇ एक गलती का अदाला नहीं, मैंने 12 का बताया। पेज है, मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम ने गलती ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ कौन सी ਹੁਕਮ गलती ਦੀ का ਦੁਖੀ अदाला ਹੁੰਦੀ ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਸੀਬ ਚ, ਪਤਾ ਜੇ? हाँ जी, नहीं। दुखी का मतलब है छोटा। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ नहीं नहीं, दुखी का मतलब है एजेंट, अच्छा, नहीं यानी समझ। एजेंट है उधर। हाँ ਦੁੱਕੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ 5 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਹ ਉਹ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰ ਦੀਆਂ ਦੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਲੱਗ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਖਾਇਫ ਸਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਯਾਦੋ ਫਾਤਿਮ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਈਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪੱਪੂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਿਰ ਪੀੜ ਲੈ ਜਾਓ ਪਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ मैं ਨਿਸ਼ਾਨ सर ਗਰਮੀ से कुरान चुप का कहना, मैं सर से कुरान चुप का कहना, आमिर नजीर को मैं प्राइवेट में कभी नहीं देखा, कभी नहीं जाना, कभी बात नहीं हुई। सर से दोनों कुरान झूठ चुप बोल के रहे, मैं दोनों कहना, झूठ मैं बोल रहे। कहता हूँ अमन नजीर कसम उठा के झूठ बोला ਆਖੋ तुम वैसे ਆਖੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ। ਹਾਂ मैं कह तो रहा हूं, आप मुझे बताएं ਆਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚ ਝੂਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਤੇ ਗਜ਼ਬ मैं ਪਵੇ। कह तो रहा हूं, तुसी बोल रहे हो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ और क्या। अदाला 12 सालों का साला, एक गलती का अदाला में मिर्जा साहब ने कौन सी गलती का अदाला किया है मुझे बता दें, वो खुद कंफ्यूज नजर आए हजरत। हाँ मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये बड़ा अच्छा आपका इल्मी सवाल है। उसमें जिस गलती का इजाला था ना वो ये था कि जिस शख्स ने, सुनो, समझ लो चौहान साहब समझाना हाँ जी। चाहते हैं गलती का ज़ाला, सुनो। हाँ जी, जिस शख्स ने ये कहा था ना इस जवाब में कि मिर्जा साहब नबी नहीं है, उन्होंने कहा कि ये तुमने दुरुस्त बात नहीं की, क्योंकि अल्लाह ताला की वही में मेरे लिए नबी रसूल मुरसल के अल्फाज आए हैं, और उससे मुराद क्या है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से फैज़ पाकर मुकालमा मुखातबा इलाहिया क़यामत तक जारी है। तो ये कहना, जब कहा जाए ना कि वो नबी नहीं है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला की तरफ से वो मामूर और मुल्हम नहीं है। ये दोनों बातें बीच में आ जाती हैं। तो इस हिस्से की उन्होंने तरदीद की कि नबूवत तो अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नहीं मिलेगी, लेकिन मुकालमा मुखातबा इलाहिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से उम्मत मोहम्मदिया में क़यामत तक जारी है। नबूवत बंद है, अजाला किस चीज का किया, अजाला किस नबूवत चीज का बंद किया? है, हाँ नबूवत उन्होंने बंद कहा है। नबूवत नबी का तो ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी का नाम भी नहीं दिया जा सकता, कसर शान होती है उनकी खत्म नबूवत की। ਇਹ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ है। मिर्जा साहब हाँ ने तो मैं अजाला यही किस कह रहे हैं, जाहिलियत है ना। हकमो अजल साहब कह रहे हैं ना नया नबी आ सकता है ना पुराना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी का नाम देना उनकी कसर शान है। ये तो ਤੇ अमन ਉਹਨਾਂ ਦੇ नजीर साहब ਜਿਹੜੇ मानते हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। अंकल ये नबी अब आना कितने है, जारी है, अमन कितने नजीर जारी, साहब ही मानते हैं। झूठ है बस। नबी और रसूल माना अमन नजीर साहब ही मानते हैं। अजाला किस चीज का किया है मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम ने, इसमें अजाला किस चीज का ये किया ना है? सारे बताया, का अब देखो ना तुम्हारी अकल इतनी छोटी है कि तुम्हें समझ नहीं आई कि मैंने क्या बयान किया। ये हाल है तुम्हारा। ये लामा नजीर साहब इसको रात को समझाएंगे प्राइवेट कार पे, तब इसको समझ आएगी। लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। मैं सर पे कुरान चुप के कहना, मैं आमिर नजीर साहब को कभी सईद साहब अब आपको कोई बात समझ आ गई है या आप खुद भी पूरी तरह कंफ्यूज हुए हैं और बाकियों को मैं बिल्कुल मसीह माऊद अलैहिस्सलाम की तरह कंफ्यूज ही हूँ। वो कंफ्यूज हैं और आप भी कंफ्यूज हैं या आप जी कंफ्यूज अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप मैंने निकल 12 गए? सालों का ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ मेरी ਤੁਸੀਂ एक गलती ਮਦਦ का ਕਰ अदाला ਸਕਦੇ ਹੋ था। ਨਾ ਹਿਲਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਾਲਾ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ?
कहीं मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं नबी हूँ, कहीं कि मेरे जाहिल मुखालिफ मुझे नबी कहते हैं। ਖਲੋ ਜਾ ਰਹੀਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝੇ ਖੁਦਾ ਕਰ बक रहा हूँ जनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਾਇਲ ਮੁਖਾਲਿਫ, ਖੁਲਾਸਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ। अब खुलासा इस तहरीर का ये है कि जाहिल मुखालिफ मेरी निस्बत इसके अंदर जाहिल ये मुखालिफ के इल्जाम अलावा लगाते हैं कि ये शख्स। रहील चुप कर। सानी साहब किताब लिखी क्यों गई सी? हाँ जी, रहील म्यूट ला जरा, किया था ना। किताब रहील म्यूट ला, एक किताब इस रहील वास्ते म्यूट लिखी ला गई मेरा है, भरा। एक किताब इस वास्ते लिखी गई है, ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ है کہ ساری کتاب تو اس سارے مضمون تو اب خلاصہ اس تحریر کا یہ ہے کہ جاہل مخالف میری نسبت یہ الزام لگاتے ہیں کہ گویا یہ شخص دعویٰ نبی یا رسول ہونے کا کرتا ہے، میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں۔ اگے کی کہنے نے یہ ہے خلاصہ، اگے کی کہنے خلاصہ اگے بھی ہے نہیں وہ اگے بھی ہے پیچھے بھی ساری کتاب پڑھتے رہو، نہیں ایسا نہ کرو عنوان ہے جس حسین طرح صاحب ایک ایسا نہ غلطی کا کرو، حوالہ ہے نا، حسین دجل نہ کرو۔ جدو کہنے اوپر تواڈے کہن تے پڑھیا سارا، میں تو نہیں پڑھیا خلاصے دی تسی، گل کر، میں نہیں کہہ رہا میں نہیں پڑھنا، اگلی دو لائناں اور پڑھ لو، خلاصہ اودے وچ ہے۔ میں روڈ تے ہاں، میں نہیں پڑھ سکتا اس وقت، ہاں جی بشک اس تسی طرح پڑھ کو دیو، پورا نہیں پڑھیا، دسو رہیل کا پورا نہیں پڑھیا، میں پورا کئی دفعہ پڑھیا تواڈے کہن تے بھی آج نہیں پڑھیا پورا، آج نہیں پڑھیا نا۔ نا اللہ میں یہی پہ کہنا نا، کسی بھی چیز کا خلاصہ جڑا ہوندا ہے وہ تو تھوڑا ہی ہوندا ہے نا، ساری کتاب تو نہیں ہوندی خلاصہ۔ اصل خلاصہ یہی ہے حسینی صاحب جو آپ نے بیان کر دیا، بالکل ایسا ہی ہے، یہی خلاصہ ہے۔ علی احمد صاحب پوسٹر موٹا سا لکھ کر لگائیں کہ ہمیں ایک غلطی کا ازالہ سمجھائیں، یہاں موٹا سا لکھ کر لگائیں کہ ہمیں ایک غلطی کا ازالہ سمجھائیں خدا کے لیے، کیونکہ جو سینی صاحب بات کریں بات ایسے ہی ہے، یہ بات ایک منٹ رہیل، ایک منٹ یار، اور رہیل کنفیوژن بڑھ گئی ہے۔ ہاں رہیل ایک منٹ ہے، امن نذیر لعنت اللہ الکاذبین۔ اگر اس سے آگے مرزا صاحب نے کوئی اپنے طور پہ جو جس دور کا نبی کہلانے سے میں نے کہا ہے، اگر وہ نہیں لکھا ہوا اور آپ نہیں اس کو پڑھ رہے سن تو لعنت اللہ الکاذبین۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کا جواب میں دیتا ہوں نا، سن تو لینا۔ جس طور سے انہوں نے خود کو نبی اور رسول کہا ہے، ہاں جی کیا اس کا ایک منٹ ہے جو میری ہم بھی اسی طور سے سمجھتے ہیں۔ یار بات تو کر لینے دیں۔ جس طور سے انہوں نے کہا ہے کہ اس طور سے میں نبی اور رسول ہوں، ہاں جی ویسے ہی ہیں، اس طور سے ہم ویسے ہی سمجھتے ہیں۔ یار بات تو کر لینے دیں۔ جملہ تو پورا کر، اتنا جس طور سے انہوں نے اگلی لائن میں کہا ہے کہ ہاں اس طور سے میں نبی اور رسول ہوں، وہ اگلی لائن ملا کے پڑھے نا۔ یار بات تو کر لینے دو خدا کے لیے۔ نہیں آپ نہیں کر رہے صحیح بات، جو سینی صاحب نے پچھلی بات کی ہے نا، دو میں لائنیں پڑھی سینی ہیں، صاحب کی بات مکمل کرنے لگا، مجھے میں وہی عرض کر رہا ہوں۔ یار مجھے فکرہ تو پورا کر لینے آپ ایسے دینا۔ کریں، حسینی صاحب کی بات جو انہوں نے کہی ہے پہلے پڑھے، میرے مجھے زبانی یاد ہے سارا ایک غلطی کا ازالہ۔ پڑھے پھر جہاں حسینی صاحب شروع کیا وہاں سے آپ کے سامنے میں نے ایک سوال رکھا تھا، لیسا محمد ابا بس بھاگ گئے، دنیا، بس امن نذیر ہے، پڑھ نہیں سکتے، کیا موت لکھا پڑ گئی ہوا ہے؟ آپ کو، بس ٹھنڈ پڑ گئی ہے، جواب نہیں دے سکے، آج تک بتا نہیں سکے وہ کون سے رجال دنیا، کون سے رجال جو الاخرہ۔ آدھا فکرہ چھوڑ کے آدھا فکرہ پڑھے، لعنت ہے اس شخص پہ، وہ بچہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ کنفیوز لکھی ہوئی ہے ساری تحریر۔ لعنت ہے اس شخص پہ جو آدھا فکرہ چھوڑ کے آدھا پڑھے اور پھر کہ کنفیوز ہے۔ لعنت پھر اس پہ بھی ڈالیں جو دوسرا فکرہ بولنے نہیں دیتا، ہتھی پڑ جاتا پورا ہے۔ پڑھ کے بتائیں، پورا پڑھ دیں۔ لو جی پورا سنو جی، چپ کر ایک منٹ رہیل، میں پوری گل کرنے لگا۔ جو مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے، جو حسینی صاحب نے پڑھا ہے کہ اب اس ساری تحریر کا خلاصہ یہ ہے، مطلب میرا یہ ہے اس سے کہ جاہل مخالف مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ گویا یہ شخص نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں۔ یہاں یہ بات مکمل ہو چکی ہے کہ ان کا دعویٰ، نہیں آگے چلیں، او بھائی کرتا ہوں، آگے والی بھی کرنے لگوں، اگر میں چھوڑ مکمل نہیں ہوئی ہے ابھی تو ذرا مکمل کرتے ہیں بیٹھ کے۔ اس سے آگے پھر نبوت کا دعویٰ نہیں یار یہ نہیں بولنا تو حسینی صاحب، ایسے تو نہیں بات ہو سکتی ہے۔ آپ جو لکھا نہیں ہے وہ کہہ رہے 5 ہیں، دفعہ میں نے ٹرائی کیا، یہ بندہ مجھے بات نہیں پوری آپ نے کرنے کہا یہ بات مکمل ہو گئی ہے، نہیں ہوئی ہے، آگے پڑھیں۔ اگر میں نے غلط کہا تو آپ اپنی ٹرم میں بتا لینا کہ میں اگلا حصہ پڑھنے لگا ہوں نا۔ تو اب بیچ میں آپ نے حاشیے ڈال رہے ہیں نا، اب بیچ میں حاشیے کیوں ڈال رہے ہیں؟ پھر حاشیے نہ ڈالیں بیچ میں۔ نہ کریں، پوری
हाँ आशिया ना डाले, पूरी बात पढ़े। अल्लामा साहब बात फिर करें। मैं उसे नतीजे ते पहुंच के चुप कर जाना भी लिखने वाला भी कंफ्यूज ते पढ़ने वाला भी कंफ्यूज। तो ताड़ी जो दिल करता है करो, या मगर मैनू बोलन दियो ते या मैं फिर ऐसे नतीजे ते पहुंच जाना कि लिखने वाला भी कंफ्यूज ते पढ़ने वाला भी कंफ्यूज। सर तुसी जिस मर्जी पहुंचो ਤੁਹਾਨੂੰ कौन रोक सकता? फिर मैनू पूरी गल ते कर लें दो ना, जे मैं गलत मगर देखो अमन जी साहब अद्धी गल करके ये ना कहो कि अद्धी गल खत्म हो गई है यार जे ये ना अगर कहो। मैं अल्लामा साहब अपनी गल पूरी करो। अगर मैं झूठ ही बोल अल्लामा साहब दिता अपनी है, गल पूरी करो। अगर मैं झूठ ही झूठे बोल बोले नहीं दिता है, देंगे ना थे, झूठे बोले झूठे की जुबान ओ भाई ਉਸੇ time। वाल साहब इनको पढ़ने ਉਹ दे। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋਈ ਪਈ ਇਸ 12 ਸਫੇ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। वाल साहब इनको पढ़ने दे। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ दोबारा ਗਲਤੀ पढ़ो, ਦਾ ਜ਼ਾਲਾ आशिया ना ਤੁਹਾਡੀ पाना ਮੌਤ ਹੈ। पूरा पढ़ो, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹੀਲ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ आशिया ना ਸਾਹਿਬ पाना confused बेच ਨੇ। अमन जी आशिया ना पाना के पता पूरा हो ਮੈਂ गया ਕਹਿੰਦਾ जुमला। ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੈ ਇੱਕ गलती आशिया का ना पाना ਜ਼ਾਲਾ। थे जुमला पूरा हो गया। पूरा पढ़ने दें। अल्लामा साहब आशियाराई ना करे। अल्लामा आशिया ना साहब पाओ आशियाराई बेच, ना यही करें। यही कह रहे हैं। इनको पढ़ने दें। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ इनको ਇੱਥੇ ਇਹ पढ़ने ਗੱਲ दें। ਮੁਕੰਮਲ कर ਦਿੱਤੀ है कि ये जाहिल आशिया मुखालफ राइल मेरे ये से आशिया डाल ज़ाला रहे नहीं। हैं, ये आशिया डाल रहे कंटिन्यू हैं। करें अल्लामा साहब। अल्लामा साहब चुप करें, आप म्यूट लगाएं। चले उनको अल्लामा कहें साहब आशिया कंटिन्यू ना करें, डालें। आशियाराई नहीं कीजिएगा। आशिया ना डालिएगा, पढ़ें। हाँ शुरू आगे करें। पढ़े। मिर्जा साहब ने ये बात यहाँ पर मुकम्मल कर दी नहीं है। की यहाँ पे मुकम्मल, झूठ कह रहे हैं आप। मुकम्मल कर लिया, मुकम्मल कर लिया। बोलने दें अटवाल साहब, इनको बोलने उनकी दें। यार अटवाल साहब अल्लामा उनकी को पूरी बात तो पूरी होने दो सर ना, पूरी बाद करें, में मैं आप बीच में इतराज आशिया ना कर लें। डाल रहा। तारिक से तो साहब बाद आपको में ही आप पता है, इतराज कर लें, किसी को बोलने तो दें। अल्लामा साहब आपको ही पता है कि वो बात वो अपना जारी आशिया हाँ तो डाल रहे हैं, आप किताब पढ़े उसके ना। ऊपर इतराज कर लें बाद में जब आपकी बारी आएगी। अगर अगर उनको बात देखिए पूरी मिर्जा साहब करने की दें। किताब है, हम पढ़ के सुनाते हैं क्या लिखा हुआ है। मैं पढ़ता हूँ, मैं भी बताता हूँ आशिया क्या होता है बीच में, उन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, चलें आप पढ़ते हैं, फिर आप पढ़ते हैं। मैं चलो पढ़ आप देता हूँ। पढ़ के सुना दो। मैं पढ़ तो देता खुद अगर मैं बात करने देते तो मैं ये बात करने लगा हूं अगली भी, लेकिन इनमें हौसला ही नहीं है सुनने। मगर सर हमने से ऐसे ना करेंगे, बात पूरी हो गई है, ऐसे ना करें। अल्लामा साहब आप चुप अगर करें। मैंने अटवाल ये साहब कह आप दिया है कि ये बात यहाँ पर मुकम्मल हो गई है तो मैंने कौन सा ऐसा शिरक कर कौन सा दिया इसमें क्या जुर्म है भी? ये हाँ। उनका ख्याल है, वो अपने ख्याल का इजहार कर रहे हैं, ना आप करें, कॉन्ट्राडिक्ट मिर्जा कर की लें किताब है, उनसे। अपना ख्याल क्यों पेश कर रहे हैं। अरे भाई कोई भी पढ़ लो, कंफ्यूजन तो अपना रहेगी अपना इसके अपना अंदर। ख्याल पेश करें, वो उनकी क्या कहते हैं अहमद रजा खान बरेलवी की तहरीरें पढ़ के। अच्छा आप पढ़ ले, मैं म्यूट करता हूँ, आप ये कंफ्यूजन दूर करके दिखा दे रहे साहब। चले पढ़े, कौन पढ़ रहा है, जल्दी पढ़े। हाँ जी रेल साहब सवाल किया, आपका सवाल करें दोबारा। सवाल यही है कि कंफ्यूज आप ना कंफ्यूज करें तहरीर यार है। अमर साहब, तो बस उसको करने रस्सा, दें। तो बस रस्सा दे सिरे दे गंढ। हाँ कहते समझ नहीं आती क्या लिखा है मिर्जा साहब ने इसमें। आप बताएं क्या समझ नहीं, कौन सा लफ्ज या कौन सा फिक्रा समझ नहीं आया। अच्छा अटवाल साहब आप तुसी चुप करो। अल्लामा कौन सा साहब, फिक्रा समझ नहीं आया ये बताओ राहिल। ये गलती का ताला पूरा पढ़ो, उसके बाद आशियाराई करेंगे। चलो पूरा पढ़ते हैं, चलो पूरा पढ़ते हैं, एक मिनट ठहर जाओ। ये 1000 दफा पढ़ा गया है, पहले 1000 दफा इस ब्रॉड में पढ़ा। सर वो कह रहा पढ़े पूरा, तो आमिर साहब आपको क्या होता है? मेरी तरफ से वो कह रहा पढ़ो पूरा। ना करें। ओ भाई मेरे लोग मेरी तरफों ने आख्या भी त्रै एतवार सलाम करके आते, उन्हें आख्या मैं करके आया, मेरे वाल झाड़ नहीं खलोता, उन्हें कहा त्रै एतवार और जा। मेरे लो तुसी रोज पढ़ो, मेरा की तरह जो अल्लामा साहब पढ़े, अल्लामा साहब राहिल साहब कह रहे हैं पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ लेने हैं। अल्लामा साहब पढ़े, आशियाराई ना मैं करें। पढ़ता हूँ राहिल साहब, वो तो मुखालिफ है, वो तो अपना 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 उसमें फैम निकाल के पेश करेंगे, अपने हाशिए डालेंगे। हम मानने वाले, हम बताते हैं क्या लिखा है। चले आप पढ़ें, चले आप पढ़ें। हाँ ठीक है, एक सेकंड होल्ड करें, मुझे वो निकाल लेने दें। ये एक गलती का ज़ाला नहीं है, ये मौत का पैगाम है। ये देखें अमर जी साहब, यार एक मिनट चुप नहीं बैठ सकते, बंदे को समझ आने लगी है तो बीच में बोल पड़ते हैं। खुदा का नाम लो। मैं बिल्कुल खामोश। सर आपकी दुखी है, उसको फोन पर समझा लेना यार, भाई मैं मुझे पता आपकी मेरा दुखी ना है। फिक्र करो। मुझे पता है, मैं भी उनको 10 मरतबा पढ़ चुका हूँ। मुझे सिर्फ उसमें एक ही बात नजर आई है, शुरू में जाहिल मुखालिफ और लास्ट में। हाँ जी पढ़े। जाहिल मुखालिफ मुझ पर ये इल्जाम लगाते हैं कि गोया इस शख्स ने नबी या रसूल होने का दावा किया। मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है। कोई बंदा ये लिख कर, वो आगे पढ़े ना, अब हाशिए डालने लग पड़े हैं। क्या आगे इसके साथ का जुमला लिखा हुआ है। अच्छा आगे अगर मैं पढ़ूंगा इस बात की निगेशन मौजूद है आगे? बिल्कुल है, पढ़े आगे। यानी ये पहले मिर्जा साहब ने ये दावा करके कि मेरा ऐसा कोई दावा नहीं, फिर इसको निगेट किया है। हाँ जी किया है, करें आगे। मिर्जा साहब ने अपनी ही निगेट बात नहीं किया, नहीं निगेट नहीं किया,
मुझे इस पता ही तरह नहीं तो वो फिर वर्ड जाहिर है यूज वो कर रहे हैं, मुझे अंग्रेजी आती आप नहीं अगर है। कोई कहे कि निगेट किया तो फिर तो वो तारिक तजाद चौहान आप खुद साहब, मुझे मान रहे हैं। अंग्रेजी नहीं आती, ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं उर्दू के बहुत वर्ड आला यूज करें। बहुत आला। लो जी चौहान साहब नोट कर लो कि मिर्जा साहब ने ये लिख कर कि हाँ मेरा ऐसा कोई दावा नहीं, आगे इसको निगेट कर दिया है। हाँ, निगेट नहीं क्या ये होता गलत है? बात है, गलत निगेट बात क्या है। होता है तारिक चौहान साहब? जी अजय तुम अमेरिका में निगेट का मतलब होता है कि उसी बात की नफी कर दी आगे, किन्नू ऐसा पे तो दस नहीं दे है ना। चौहान साहब किन्नू पे दस दे रोटी में चोची कहंदा है हाँ वो कहंदा निगेट का कौन? की मतलब ਹੁੰਦਾ जान नहीं के पता। मस्ती करन लगे है। छड्डो छड्डो उस गल नु। ओ सर मैंने अंग्रेजी नहीं आती रही इतनी अंग्रेजी ज्यादा। आंदी मैं मिर्जा साहब ने अच्छा ये बता दें उर्दू में बता दें, उर्दू में बता दें कि जब मिर्जा साहब ने ये लिखा कि मेरा ऐसा कोई दावा नहीं। एक मिनट रेल चुप कर। हाँ जी हाँ जी, उसको एक्सप्लेन किया आगे उन्होंने। जब मिर्जा साहब ने ये कहा कि मेरा ऐसा कोई दावा नहीं, इसके बाद इसके उलट बात लिखी है। अगला नहीं, अगला हिस्सा पढ़ेंगे तो इसके उलट बात में नजर आएगी। इसके बाद उसको एक्सप्लेन किया है, उसको एक्सप्लेन किया है। नहीं इसका इसकी क्या एक्सप्लेनेशन होती है? मेरा ऐसा कोई दावा नहीं, नबी और आगे रसूल होने पढ़े का ना, कोई दावा नहीं। आगे पढ़े भी पता चल जाता है। भाई आगे या तो दावा होगा या नहीं होगा, आगे दावा है कि नहीं देखिए है? अमर साहब, अमर साहब पढ़े तो आगे तो पढ़े अल्लामा साहब पढ़े तो तारक चौहान ये नहीं पढ़ेंगे, राइट साहब मर जाएंगे नहीं पढ़ेंगे, भाई मैं पूछ रहा हूँ मेरी बात मौत वाकई हो जाएगी इनकी। अल्लामा साहब आगे पढ़े, अल्लामा साहब आगे पढ़े। अच्छा नहीं पढ़ेंगे, मैं कह रहा हूँ राइट साहब आपको। इसलिए मैं कहता वो हूँ पूछ रहे हैं उनकी बात का इसलिए जवाब मैं आप दे दें, कहता हूँ कि मैं नहीं उसको तो मैं मुंह दे देता मांगा हूँ। इनाम दूंगा जो बंदा एक गलती का इजाला का खुलासा हाँ एक गलती का इजाला का खुलासा जो बंदा मुझे पढ़ के सुना दे ना, दिल में अपने अपने लफ्जों में यानी बयान कर दे, दिल में पढ़ ले उसको अपने लफ्जों में बयान कर दे, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। नहीं खुलासा यही है जो आपने पढ़ दिया है, ये खुलासा यही है कि एक शख्स ने खुलासा यही है कि उनका नबूवत का दावा नहीं है। आप सुने ना, आप सुने ना, नबी आ ही नहीं सकता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकबाल साहब आप भी एक गलती इस किताब लिखने का मकसद ये था, नबूवत उनका कहना ये वो राइट है साहब पढ़ेगा मेरा ऐसा पता कोई यार, दावा नहीं। गजल करता है ये बंदा राइट आप साहब, दोनों में से अगला नहीं पढ़ेगा क्या लिखा हुआ है। तो गड़बड़ है सर, गड़बड़ मैं आपको मिर्जा साहब का पैरोकार मान गया हूँ कि मिर्जा साहब ने ये कहकर कि मेरा ऐसा कोई दावा नहीं, अगले ही फिक्रे में इसके उलट बात लिखी हुई है, ये कहना चाहते हैं जटवाल यही तो कंफ्यूजन है। नहीं मैं नहीं कहना चाहता, आप बकवास कर रहे हैं। आप अपना अपना गन मेरे पीछे चोप रहे हैं। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं? आगे क्या लिखा हुआ है मिर्जा साहब ने? आगे पढ़े ना, क्या लिखा पढ़े भाई जब बंदा मैं अगर रुक कह जाओ देता यहाँ हूँ, पे। मैं अगर हमें कह रुक देता जाओ हूँ, यहाँ लेना, पे। सुन तो लेना, मैं अगर एक चीज को मुतलकन आगे क्यों नहीं इनकार पढ़ते? कर देता हूँ, ये सुन लिया मैंने बार बार, ये सुन लिया कि मैं लाहौर नहीं गया, हाँ जी, मैं कराची नहीं गया, मैं पाकिस्तान नहीं गया, इसके अगले फिक्रे में मैं क्या मतलब है, मैं वो शुरली छोड़ने लगा हूँ। अगले हाँ फिक्रे तो में लिखा क्या है? होगा कि मैं पाकिस्तान नहीं गया तो वो शुरली छोड़ने वाली बात है। आगे क्या जहाँ है? जो लिखा हो आगे पढ़े, यहूदियों की तरह ना अच्छा करें, एक आधा मिनट, फिक्रा एक छोड़ मिनट, दिया आधा पढ़ सुन ले। लो सुन लो, जो कुछ आगे लिखा हुआ है नबी के वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत यहूद के मानद हो जाएगी। ये आप लोगों की वजह से उम्मत हुई है यहूद के मानद, हाँ कि आधे पे उंगली रख लेते हैं आधा पढ़ लेते हैं। यहूदियों ने भी वो काम नहीं किए जो हाँ जी, इन्होंने यहूद किए के हैं। मानद वही हुए हैं जिन्होंने ये किया कि आधा पढ़ लेते हैं आधा छोड़ देते हैं। किस यहूदी ने ये तारिक दावा चौहान किया साहब है ने- कि मैं रहमतुल्लिल आलमीन तारिक बनकर चौहान आया? साहब ने अभी बात किया है, उसकी किताब का लिखने का मकसद बताया। यहूदियों ने भी नहीं ये कि हरकतें की जो आपने की हुई हैं। किसी शख्स ने अल्लामा साहब, मुझे तो किसी आप शख्स भी ने नबी confused लग रहे के हो। मिर्जा अल्लामा साहब साहब, को मुझे आप भी जब confused ये लग रहे पूछा हो। कि वो नबी हैं कि नहीं है, तो उस बारे में तारिक चौहान साहब ने एक्सप्लेन किया है उसको। अब आपने जो आखिरी तहरीर पढ़ी क्या है एक्सप्लेन किया चौहान साहब ने? क्या एक्सप्लेन अब खुलासा यहाँ पे खत्म नहीं हो गया, खुलासा आगे लिखा हुआ है। ओ भाई तो आप खलासा, यहूदियों की अच्छा तरह खलासा आधे ये उंगली बयान पे रख करके आगे खलासा आधे फिर पे है। उंगली रख के यहूदियों की तरह आप कहते हैं कि भाई यहाँ पे खत्म हो गया, इससे आगे नहीं पढ़ना। आगे क्यों नहीं पढ़ते? अच्छा आधा मैं घंटा हो कहता गया आगे हूँ, पढ़ने मेरी से। बात सुन लो दो ना, लाइनें सवाल पढ़ते हुए मेरा शर्म सुन आती लो, है, मौत मेरा पड़ जाती है दो सवाल लाइनें सुन पढ़ते लो, हुए। और मेरा सवाल सुन लो, जो कुछ आगे अमन लिखा नजीर हुआ दो है लाइनें पढ़ते हुए मौत पड़ जाती है, उसको सवाल अपने बाद में लफ्जों में सुनेंगे। बयान कर दो, जो आगे लिखा हुआ है उसको अपने लफ्जों में अगली बयान दो कर लाइनें पढ़ो ना, जो तुमने पढ़ा उसको पढ़ो आगे। दो। आगे क्या बंद लिखा क्यों हुआ नहीं पढ़ी है? यहाँ पे? सब पढ़ दें अल्लामा साहब, पढ़ दें, क्या लिखा है पढ़ दें। वो नहीं पढ़ेंगे, मर जाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ कि आगे क्या मर लिखा जाएंगे, हुआ मर है? जाएंगे। मौत आगे वाक़ई इसके हो उलट जाती है लिखा हुआ है मिर्जा साहब ने। अगली दो लाइनों में सारी बरेलियत की मौत क्या वाक़ई हो मुतजाद जाती है। बातें लिखी हुई हैं मिर्जा साहब ने आखिरी सफे पर जाकर? अगले दो सत्रों में इनकी बरेलियों की मौत वाक़ई हो जाती है। सच यही है जो सैनी साहब ने भी कहा और रहील साहब ने भी कहा, पढ़ने नहीं देंगे। और सैनी साहब ने एहतराम के मारे पहला मिसरा नहीं पढ़ा, मैंने पहला मिसरा भी पढ़ दिया है कि बक रहा हूँ जनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई,
मेरे दुख की दवा करे हाँ। कोई। इसलिए अजाइल साहब ये एक गलती का ज़ाला में ये लिखा है, आगे नहीं मिर्जा पढ़ेंगे। साहब ने ये लिखा है कि कुछ ना समझे अल्लामा खुदा माइक करे गर्दी पर कोई, ये लिखा है मैंने। अल्लामा साहब माइक गर्दी पर आ नहीं गए पढ़ेंगे, आप। मौत वाकई हो जाएगी इनकी। और भाई इनको पूछ के रहील साहब, यार इनको पूछ के बता दो कि आगे क्या लिखा है। आगे इस बात पे 1 घंटा बहस की है इसने। आगे कुछ भी नहीं लिखा है। बता दो क्या लिखा है, मैं पढ़ूं? इतना कह दिया कि आगे से पढ़ लो। अगर आगे इसके उलट लिखा है, अगर आगे इसके उलट लिखा है तो एक ऐसा शख्स जो मुतजाद बातें करने वाला होता है वो कौन होता है? बहस करते हुए अगली लाइन नहीं पढ़ सके तुम, तुम्हें पता है ब्रेलवेल की मौत हो जाती वहां पे। भाई मेरा ख्याल है कोई चीज फटी हुई है, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, इसके माइक के अंदर कोई चीज फटी हुई है, चेक कर लें इसको। माइक ठीक यकीन है। करें आप दोनों ने और कंफ्यूजन फैला दिए, आप दोनों ने और कंफ्यूजन फैला दिए। पढ़ नहीं रहा ना, पढ़ने दे आगे उसको। कंफ्यूजन दूर नहीं हो सकती क्योंकि इसका खुलासा यही है, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। ये जो 2 लाइनें आगे पढ़ दे राइल साहब, मसीह जो 2 लाइनें आगे सलाम पढ़ जितना दे। रायता फैला कर गए ना, उससे ज्यादा आप लोगों ने फैला दिया। हाँ, इनसे क्या 2 लाइनें आगे पढ़ दे। नहीं पढ़ेगा। रहील साहब हुसैनी साहब ने आपको सही समझा दिया है, से ये बोले जाएंगे जो कुछ हुसैनी साहब ने आपको समझा दिया है वही लिखा हुआ है इसके आगे। रेलियत मर जाएगी। सलाम में रायता फैला कर गए। वो जब ले सलात सलाम बोलते हो साथ बोल दिया करो, इनका ना मुस्तहक। नजीर का माइक खुल गया। जब ये ले सलाम बोलते हो ना साथ बोल